So good morning, everybody. Good morning, everyone. Good Morning. morning, Vijay. Good morning. Good Thank you all morning. for Good joining morning. in. Sir. Good morning. Good Good morning. morning. Good Very morning, good everybody. morning. Good Good morning, morning, Ishi. Vijay. Good Good morning. morning, Good morning. everybody. Good Happy morning. Good Amritwala. morning, Good morning. Vijay. Happy Good Happy morning. Amritala. Thank you Amritwala. all. Good 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 morning. 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 Thank Good you. Sir. Good morning. morning. Good Good morning. morning. Good morning, Good everybody. morning. Good Good morning. morning, Good morning, Ishi. Vijay. Good Good morning. Good morning. morning, Good everybody. Happy Good Amritwala. morning. Good morning, morning. Vijay. Happy Good Happy morning. Amritala. Thank you Amritwala. all. Good Good morning. morning. Thank Good you. Sir. Good morning. morning. Good Good morning. morning. Good Good morning, morning. Good everybody. morning. Good 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 morning. morning, morning, Ishi. Vijay. Good Good morning. Good morning. morning, everybody. Good Happy morning. Good Good Amritwala. morning. Good morning, morning. Vijay. Happy Good Happy Amritala. morning. Thank you Amritwala. all. Good Good morning. morning. Thank Sir. you. Good Good morning. morning. Good Good morning. morning. Good Good morning, morning. Good everybody. morning. Good Good morning. morning, Ishi. Good Good morning. Good morning. morning, everybody. Good Happy morning. Good Amritwala. Good morning, morning. Vijay. Happy Good Happy Amritala. morning. Thank you Amritwala. all. Good Good morning. morning. Thank you all for joining in. And a very, very, very good morning to all of you. Happy Amrit Vela. Thank you. Thank you. Thank you. Background में there was this YouTube live going on, so it got repeated. But thank you everybody for joining in, and welcome to the Millionaire session. It is day 7 today. It has been कि अब 7 days of regular practice आप लोग कर रहे हो, 7 days of count your blessings, 7 days of magic rock, and then we have magical relationships, money magic, magical health, and कल का चैप्टर था works like magic. वर्क्स लाइक मैजिक की असाइनमेंट थी. बुक ने बोला था कि थ्रू आउट द डे यू हैव टू, आपका एक मैनेजर है, इनविजिबल मैनेजर, एंड उसको नोट करवाना है आपने कि व्हाट आर यू ग्रेटफुल फॉर. सो टेल मी, आप लोगों ने कितने लिखवाए अपने मैनेजर को कल? व्हाट काइंड ऑफ अ बॉस वर यू? कि आपने मैनेजर को लिखवा लिखवा के उसके बिल्कुल हाथ वैसे कर दिए, या फिर आपने बोला कि हाँ बस 5 चीजें लिख ले काफी है? वंडरफुल. 100, 300. एंड कल की असाइनमेंट तो आई वुड से मैजिक बुक ने तो बोला था बोल के करने को, बट लेटर इट वाज आल्सो सेड कि आप उसको लिख के करें, लिस्ट बनाओ एटलीस्ट व्हाट ऑल थिंग्स दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर. तो हाउ मेनी डिड यू डू? लिख के किसने की, बोल के किसने की, पहले ये बताओ. किसने सिर्फ बोल के की वो लिखो, टॉकिंग, एंड जिसने लिखा लिख के की वो राइटिंग लिख सकता है. और जिसने दोनों किए दैट इज वंडरफुल. यू कैन राइट बोथ. वंडरफुल. चलो, अगर आपने बोल के भी की है एंड यू थिंक कि आपने 100 से ऊपर चीजों के बारे में ग्रेटिट्यूड की है, आई वुड से गिव योर सेल्फ अ थम्स अप एंड यू हैव डन द असाइनमेंट वेरी ब्यूटिफुली. एंड फॉर दैट, पीपल हु हैव इवन ट्राइड, अगर किसी ने 100 भी नहीं की बट कोशिश की है कि हाँ मैं करूँ, इट इज टाइम फॉर यू टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट. चाहे आपने 10 लिखवाई हो, 50 लिखवाई हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस जो भी एफर्ट आपने डाला उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड करो अपने आप को, सो दैट यू नो दी इट मल्टीप्लाइज. आपकी लाइफ में और अबंडेंस में आने लग जाएगा. wherever you are, just 100, 50, 500, 1000, anything. ठीक है? So let's start by being grateful for ourselves. I will be saying gratitude to myself. अपना नाम लेके आप अपने नाम को ले सकते हैं. You can fold your hands or keep your hands on your heart, and let's start this beautiful day. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Ish, for waking up this morning feeling fit, fine, and fantastic. Thank you for doing your magic book assignments. Thank you for reading the book, for doing assignment, for making your life magical and beautiful. वेदर आप अभी नहा लाइक शावर नहा के बैठे हैं, नहीं नहाए, बेड पे लेटे हुए हैं, चेयर पे बैठे हुए हैं, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल कि wherever you are, however you are being right now, you want to make your life magical, and thank you for that. Thank you for thinking about you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yes.
Can you share one example? Okay, so what we will do right now, वैसे एग्जाम्पल के लिए आई वुड सजेस्ट आप एक बार मैजिक बुक पढ़ो, बिकॉज दैट इज द एग्जैक्ट राइट वे ऑन हाउ टू डू इट। जो मैजिक बुक पढ़ के आपको समझ आएगा आप वैसे स्टार्ट करो। उसके बाद वी आर ऑलवेज देयर विद यू, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पहला इनिशिएटिव आप खुद लो। अगर वो क्लास में आपको नहीं समझ आया, या तो क्लास दोबारा सुन लो या मैजिक बुक दोबारा पढ़ लो। बट ऑल्सो वी विल बी प्रैक्टिसिंग अभी। सो आई वुड लाइक अ फ्यू पीपल टू अनम्यूट देमसेल्व्स, रेज योर हैंड एंड आई विल अनम्यूट यू। आपको अपने अभी वर्क लाइक मैजिक की असाइनमेंट करनी है फॉर एनी 10 थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई विल स्टार्ट एंड राइट नाउ आई विल से आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फोन। अब मैजिक बुक ने नहीं बताया कि बिकॉज लिखना है, तो हम अभी सिर्फ मैजिक बुक फॉलो करेंगे। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फोन, आई एम ग्रेटफुल फॉर द iPad, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई लैपटॉप, आई एम ग्रेटफुल फॉर द Zoom call, आई एम ग्रेटफुल फॉर द Wi-Fi, आई एम ग्रेटफुल फॉर द इंटरनेट कनेक्शन, आई एम ग्रेटफुल फॉर द लैम्प, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई हॉट वाटर, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस कप। ठीक है, वेरी सिंपल। आई एम ग्रेटफुल फॉर डैश डैश डैश, जो भी आपको चीज हो। तो नाउ, एंड आपने सिर्फ 10-10 लिखवानी है। 10-10 के बाद वी विल कीप मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। तो आई वांट कि जल्दी जल्दी 5-6 लोगों की हम ये शेयरिंग ले फटाफट, ठीक है? सो यस, हु वुड लाइक टू अनम्यूट देमसेल्व्स, प्लीज रेज योर हैंड। एंड ट्रस्ट मी, ये इसमें आपका फायदा इस कैसे होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बिकॉज यू विल बी सेइंग योर ग्रेटिट्यूड इन फ्रंट ऑफ ऑलमोस्ट 300+ पीपल। आपकी लाइफ में मैजिक बहुत तेज होने वाले हैं, ठीक है? So yes, Meenakshi ji, you can unmute yourselves. Good morning. Good morning. I'm grateful for my heart. I'm grateful to be alive. I'm grateful for my ears. I'm grateful for my eyes. I'm grateful for my hands. I'm grateful for my fingers. I'm grateful for my legs. I'm grateful for my stomach. I'm grateful for my arms and I'm grateful for my mind. I'm grateful for my intelligence and I'm grateful for my mouth. वाह, 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 आपने तो बहुत अच्छा एक राइमिंग भी बना दिया। थैंक यू। Thank you. यस, थैंक यू। मंथन, मंथन जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। I'm I'm grateful to this beautiful morning. I'm grateful to Ish sir. I'm grateful to Ashmi madam. I'm grateful to Amin madam. I'm grateful to Arvind sir, who's taught me a lot of things. I'm grateful to my blanket, who's giving warmth to me. I'm grateful to my pen. I'm grateful to my copy. I'm grateful to this table. I'm grateful to this Zoom set. I'm grateful to Magic Book. I'm grateful to Rhonda Van. I'm grateful to myself. I'm grateful to वाह, my energy. I'm grateful to वाह, Ashmi madam. I'm grateful to Ishi sir. Thank you, thank you, thank you. थैंक यू। वाह, Energy. इसको कहते हैं एनर्जी बूस्ट। वेरी गुड, थैंक यू। यस, नेक्स्ट, मिलन जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। I'm यस, grateful for this beautiful morning. I'm grateful to be alive today. I'm grateful for my laptop. I'm grateful for the Zoom meeting. I'm grateful for the magic book. I'm grateful for you, sir. I'm grateful for the calendar. I'm grateful for my gratitude journal. I'm grateful for the pen. I'm grateful for the bottle. I'm grateful for my phone. I'm grateful for the Wi-Fi. I'm grateful for the copies. Thank you, thank you, thank थैंक, you. wow, so beautiful. Thank you for the sharing. Yes, Dr. Pratibha ji, you can unmute yourself. Yes, thank you. I'm grateful for the morning. I'm grateful for this Zoom meeting. I'm grateful for my coffee. I'm grateful for my phone. I'm grateful for my Dharti Mata. I'm grateful for this chair I'm sitting. I'm grateful for the laptop. I'm grateful for the my camera. I'm grateful camera of my laptop. I'm grateful for this table where for this my workstation. I'm grateful for the electricity. I'm grateful for the glass. I'm grateful for the hot water I'm drinking. I'm grateful for the banana I'm eating in the morning. I'm Very good. grateful for the dry fruits I'm eating, and I'm grateful for the stool where I'm resting my legs. I'm grateful for my brothers and sisters. I'm grateful for the हो whole गए, हो गए, world. हो गए, 10 हो गया। आई नो सबके पास बहुत सारे। Thank So you, thank you. thank you, thank you so much. Very good, wonderful. Next, I
Ashmita, Ashmi, Ashima ji, sorry. Yes, you can unmute yourself. Hi, Yes, hi, good morning. good morning. Yeah, Yeah, so 10 blessings. So I'm grateful that yesterday we practiced in MMM, and I'm so grateful that I got my visa extension in Japan. I'm grateful to the bullet train that I'm traveling in. I'm so grateful to this magic book session because I it just charges me for the day. I'm grateful for the आप एक money. जगह खड़े होके कर दो ताकि हमारी ऑडियो Yes. एंड विजुअल एक बार सेट हो जाए. Okay. यस. So I'm grateful for the money abundance with which I can travel easily and happily. I'm grateful राइट. for Triple M sessions and Ashmi ma'am and Annie ma'am, वेरी because गुड. we are learning so much and we are transforming our lives. I'm so grateful for the peak state practice because that charges us up, and I'm grateful for water because this nourishes our life, and I'm grateful for the magical air because that gives me oxygen. I'm grateful for my phone because I can attend this session so easily, and I'm grateful for internet connection for वेरी गुड. making this possible. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. Thank you so much for this beautiful, magical, grateful morning, everybody. आपकी शेयरिंग्स, जिसका क्वेश्चन था कि हाउ आर वी सपोज टू डू दिस प्रैक्टिस, डिड यू गेट द आंसर? आपने, किसी ने पूछा था कि कैसे करना है, तो यही करना है जैसे सबने किया है. जस्ट यू नीड टू से आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट. एंड जितनी इसमें आप हैप्पीनेस, हाई एनर्जी, प्लेफुलनेस, ग्रैटिट्यूड, जितनी ज्यादा फीलिंग अपनी आप पॉजिटिव लेके जाएंगे, द बेटर द प्रैक्टिस विल वर्क. है ना? तो थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन एंड दिस ब्यूटीफुल प्रैक्टिस, जिसकी वजह से वी ऑल्सो लर्न कि हाउ हाउ वी कैन रेज आवर एनर्जी. अब जो रिटर्न वाला है, इसके अलावा मैम ने बोला था कि लिख के भी करना, बिकॉज लिख के जब आप करते हो आपका फोकस और ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेडली इस चीज पे जाएगा. तो यू कैन राइट इट डाउन द लिस्ट कि आपने, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस कप, आई एम ग्रेटफुल फॉर द वाटर, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस फोन. अपने आसपास ही देख लो. आई एम श्योर देयर आर 1,000 थिंग्स यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर. आई एम ग्रेटफुल फॉर द lower that I'm wearing. I'm grateful for this coat. I'm grateful for the shirt. I'm grateful for the windows. I'm grateful for the sky. I'm grateful for the trees, and so on and so forth. ठीक है? And now today's chapter. आज का चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है. इट इज कॉल्ड मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी. In the life of a human being, there's always both things, positive and negative. जो एंड इट इज, हमने मैजिक बुक में अभी तक जो प्रैक्टिस से सीखा, कि वो ये सीखा कि व्हेन यू फिक्स योर बीइंग, आप अगर प्रैक्टिसेस करके अपने इनसाइड को ठीक करते हो, तो आउटसाइड भी ठीक हो जाता है. अगर आपका इनसाइड में देयर इज सम नेगेटिविटी, दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन द आउटसाइड. एंड मैजिक बुक आगे आके आप पढ़ोगे इस चैप्टर में कि मैजिक बुक सेज कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट major thing that causes negativity in your life is taking things for granted. तो आज हम एक लिस्ट बनाएंगे. अभी के लिए आप अपने पेन और कॉपी निकाल सकते हैं कि what all do I take for granted as of right now. अपनी डेली लाइफ में, अपने, आपके चार, जैसे हमने 4 एरियाज में सपने बनाए थे: हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप्स, करियर. तो वैसे इन 4 एरियाज में यू नीड टू फाइंड आउट what all do you take for granted. So you can write down the heading कि सबसे पहले हम, लेट्स से वी स्टार्ट विद हेल्थ. ठीक है? तो हेल्थ में, इज देयर समथिंग दैट यू टेक फॉर ग्रांटेड? डू यू टेक अपनी आई साइट फॉर ग्रांटेड? बिकॉज मेरी आई साइट को मैं, आई एम वेकिंग अप एवरी डे बट आई एम नॉट थैंक एंड यूजिंग माई आईज एवरी डे, बट आई एम नॉट थैंकिंग माई आईज एवरी डे. डू आई टेक इट फॉर ग्रांटेड? यस, आई डू. तो लिख लो, हाँ, आईज. जस्ट यू नीड टू मेक अ लिस्ट. यू डोंट नीड टू राइट कि आईज को क्या क्या करते हैं. बस नाम लिख दो कि हाँ, ये एरियाज में मैंने फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है. माई नोज, माई माउथ, माई ईयर्स, माई हेयर. ये बाल तो ऐसे ही रहेंगे, ठीक है. माई स्किन. व्हाट एल्स?
what all things do you think you take for granted in life, in your health area, your energy levels? पेन को कौन कैसे ग्रांटेड लेता है? अभी आपने अपनी नॉर्मल बॉडी पार्ट्स के बारे में बताना है कि कोई बॉडी पार्ट हो, कोई आपके एनर्जी लेवल्स हो, कि आपको आपने फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है, मतलब आप उनकी परवाह नहीं करते यार, कभी ध्यान नहीं दिया उस पर, अपने स्टमक पे कभी ध्यान नहीं दिया। पहले हम बॉडी पार्ट से करते हैं। अपनी लेग्स पे कभी ध्यान नहीं दिया, जब कभी दर्द हो गई, कभी लग गई, तब तो दे दिया कि हाँ ठीक हो जा, ठीक हो जा, एंड एक बार ठीक हो गई उसके बाद कभी ध्यान ही नहीं दिया। माई नीज, माई फिंगर्स, कभी किसकी ग्रेटिट्यूड ही नहीं किए। माई विश, कभी ग्रेटिट्यूड ही नहीं किए। तो थिंक व्हाट ऑल, माई शोल्डर्स, माई चेस्ट एरिया, माई बैक, माई बैकबोन, माई हिप्स, माई लिप्स, माई एल्बोज। एक लिस्ट बना लो, लिख लो उसको अपनी कॉपी में भी साथ साथ, कि दीज आर द थिंग दैट आई टेक फॉर ग्रांटेड। जॉइंट्स हैं तो कहाँ के जॉइंट्स आपने फॉर ग्रांटेड लिए? ऑल पार्ट्स लिख के यू कांट, ऐसे आप कंप्लीट नहीं, ऑल पार्ट्स में अगर आप लिखो कि ऑल पार्ट फॉर ग्रांटेड लिए, तो आपने ये पार्ट, ये चीज भी ग्रांटेड ले ली कि आपने ऑल पार्ट्स को फॉर ग्रांटेड लिया। एटलीस्ट द फर्स्ट थिंग इज टू बी अवेयर कि आपने एग्जैक्टली किस किस चीजों को फॉर ग्रांटेड लिया है। तो हम आज एक एक्सरसाइज करेंगे, व्हेन वी विल टॉक अबाउट दीज थिंग्स वी विल ट्राई टू गो डीपर, कि हम थोड़ा और डीप जाए इस चीज के अंदर। योर हार्ट फॉर ग्रांटेड, योर ब्रेन फॉर ग्रांटेड, कि आइडियाज आते रहते हैं बट मैं कभी ब्रेन के थैंक यू नहीं बोलता। थिंक मोर, व्हाट एल्स डू यू थिंक आई हैव टेकन फॉर ग्रांटेड? माय गॉल ब्लैडर, माय स्मॉल इंटेस्टाइन, माय लार्ज इंटेस्टाइन। पढ़ा तो था स्कूल में कि स्मॉल इंटेस्टाइन का ये काम होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का ये काम होता है, बट कभी थैंक यू नहीं बोला, इवन दो दे आर वर्किंग 24/7 since the day you were born, digesting your food, मेकिंग श्योर कि आप जो चीज़ आपको चाहिए वो डाइजेस्ट हो रहा है, जो नहीं चाहिए वो एक्सक्रीट होते जा रहा है, बट स्टिल हमने कभी उसका ग्रेटिट्यूड ही नहीं किया। एटलीस्ट आपकी लिस्ट में आई वुड से फॉर नाउ मिनिमम ऑफ मिनिमम 10 to 20 थिंग्स होनी चाहिए। When done, then we will move on to the next thing. Now the next thing comes is relationships. In my relationship, what all relationships have I taken for granted? हो सकता है आई हैव टेकन माई रिलेशनशिप विद माई मॉम फॉर ग्रांटेड, कि मॉम मुझे ब्रेकफास्ट बना के देती है, मॉम लंच पैक करती है, बट मैं हमेशा रोज थैंक यू नहीं बोलता। हाँ, एक दो बार बोले हैं, लिखे हैं, 5-10 बार बोले हैं, 20 बार बोले हैं, बट शी इज बिन गिविंग मी लंच सिंस सो मेनी ईयर्स, तो आई टेक इट फॉर ग्रांटेड, यस। अब आपके पार्टनर के साथ, आपके पार्टनर को आप, पार्टनर आपके लिए कुछ ना कुछ करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है आपको, आपके साथ जो रोमांटिक रिलेशनशिप्स रखता है, जॉयफुल रिलेशनशिप्स होते हैं, यू हैव फन, यू गो आउट ऑन वेकेशन, आपके लिए कभी टैक्सी के पैसे दे देता है, कभी कुछ कर देता है, बट यू आर नॉट टेकिंग इट, यू आर नॉट, यू हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड। क्या उसका तो काम है कि हाँ, इफ आई एम एग्जाम्पल, इफ यू आर हाउस वाइफ एंड यू आर नॉट अर्निंग फाइनेंशियली, तो हस्बैंड के थ्रू पैसा आता सारा, तो उसका तो काम है, जब मैं नहीं कमाता तो वो तो देगा ही मुझे पैसे, घर चलाने का खर्चा तो उसका काम है, बट काम है ठीक है, बट आर यू टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड? अपने मॉम डैड के साथ, अपने मेड्स, आपके घर पे हाउस हेल्प होगी, मेड होगी, वो कुछ आपने उसको बोला कि आपने डस्टिंग करनी है, वो डस्टिंग के साथ साथ कभी आपको सामान लिफ्ट करके भी लेफ्ट राइट करने में, सोफा भी आगे पीछे करने में हेल्प कर देती है, बट आई हैव नेवर सेड थैंक यू टू हर। डू यू थिंक यू हैव टेकन दैट फॉर ग्रांटेड? तो लिखो, रिलेशनशिप विद मेड, आपका कोई गार्ड होगा, कॉलोनी का गार्ड होगा, उसके साथ,
आपका ड्राइवर होगा, आपके ऑफिस का स्टाफ होगा। अगर आपने सिर्फ ऑफिस स्टाफ है तो राइट डाउन ईच एंड एवरी नेम ऑफ द ऑफिस स्टाफ। अगर आपके ऑफिस में 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 1000 लोग हैं, एंड आपको लगता है कि आप उनके साथ आपका रिलेशनशिप है, बट यू टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड कि हाँ हाँ ये काम तो हो ही जाएगा, या फिर ये काम करते हो तो इनका तो काम ये करना। इफ यू थिंक यू टेक इट फॉर ग्रांटेड, राइट इट डाउन। Relationship with, if I say, but I have a relationship with Pavan Bhaiya, I have a relationship with Mohit ji, I have a relationship with Munna, I have a relationship जो भी मेरे ऑफिस का स्टाफ है, so I have a lot of different relationships in one office only. Am I taking it for granted? तो लिख लो। आपका स्वीपर भी हो, फ्रॉम द लोएस्ट, फ्रॉम द कहते हैं ना ग्राउंड लेवल टू द अप, सबके साथ। आपके फैमिली में आपके फ्रेंड्स देखो, अपने दोस्तों के साथ देखो, यार ये तो दोस्त है, ये तो स्कूल से दोस्त हैं, तो ऐसे ही तो होते हैं, बट उनको कभी थैंक यू नहीं बोला। राइट इट डाउन। फॉर ग्रांटेड दोस्तों के साथ क्या है? गवर्नमेंट को फॉर ग्रांटेड लिया आपने कि गवर्नमेंट सड़क सही बनाएगी बनाएगी। आपके घर पे कोई न्यूज़पेपर देने आता है, उसको फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है। आपके घर पे वाईफाई प्रोवाइड करती है कोई कंपनी, तो वो वाईफाई वाली कंपनी को फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है। आपने नेटफ्लिक्स से आपको फुल डे नेटफ्लिक्स देखते हो, amazon प्राइम यूज करते हो, बट कभी उनको थैंक यू ही नहीं बोला। तो राइट इट डाउन। आपके घर पे इलेक्ट्रिशियन काम करने आता था या आता है, आपके घर पे इवन जो सिविल वर्कर्स होते हैं, जब आपने अगर कोई नया रिसेंटली या कभी भी नया घर बनवाया, आपके इंटीरियर डेकोर करवाया, इंटीरियर डेकोर वाला हो गया, आपके घर पे इवन जो फ्लोर मार्बल लगाने आए थे वो वाले लड़के हो गए, इलेक्ट्रिशियंस हो गए, प्लम्बर्स हो गए। थिंक अबाउट इट कि हाँ आप उनसे मिले हो, आप उनको फेस टू फेस देखा है आपने, बट कभी थैंक यू नहीं बोला। राइट इट डाउन। आज लिखो कि हाँ उनको भी थैंक यू नहीं बोला मैंने, तो मैंने फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है। एटलीस्ट यू शुड बी अवेयर। फर्स्ट थिंग इज अवेयरनेस ऑफ वेयर यू आर, एक्सेप्टेंस कि हाँ मैंने लिया है फॉर ग्रांटेड। जब आप एक्सेप्टेंस करना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप आएगा ग्रेटिट्यूड का। सो थिंक मोर, व्हाट आर मोर रिलेशनशिप्स। अपने स्कूल की टीचर्स को याद कर लो, एनी स्कूल टीचर यू टुक फॉर ग्रांटेड। आपने कोई ट्रैफिक पुलिस वाले लोग होते हैं, उनका तो काम यही है, फॉर टेकन फॉर ग्रांटेड। आपके कोई ग्रुप क्लासेस के कोचेस होंगे, यू हैव टेकन फॉर ग्रांटेड कि ये तो सिखाएंगे, इनको तो पैसे दे रहा हूं मैं सिखाने के। आपके नेबर्स हो गए, आपके नेबर्स में आपकी कोई जॉइंट फैमिली होगी, पीपल इन द जॉइंट फैमिली कि हाँ अगर अगर इफ यू आर 40 45 ईयर ओल्ड, 50 ईयर ओल्ड, एंड वो बच्चे 10 15 20 साल के बच्चे हैं, तो आपने उनको फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है कि हम तो बड़े बड़े लोग बात करते हैं, बच्चे तो फॉर ग्रांटेड है, पानी ले आओ, समथिंग लाइक दैट। यू कैन राइट इट डाउन, एटलीस्ट जस्ट नो कि हाँ ये लोग हैं फैमिली में एंड आई हैव टेकन देम फॉर ग्रांटेड। आपने कोई टेक्नोलॉजी यूज करते हो, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बट यू हैव नेवर गिवन थैंक्स टू देम, तो यू हैव टेकन दैट फॉर ग्रांटेड। किसी ने आपकी कभी हेल्प की हो, राइट इट डाउन। रिलेटिव में कौन रिलेटिव है जिनको आपने लिया है? अगर नाम है रिलेटिव्स का तो उनका नाम लिखो साथ में। देन वी गेट कम टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ मनी। मनी की एरिया में आपने क्या क्या चीजें फॉर ग्रांटेड ली है कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी का बिल पापा पे कर ही देते हैं, तो छोड़ो। पानी का बिल हो गया, यहाँ somebody pays इट। घर पे अगर फ्रूट्स पड़े एक्स्ट्रा, ब्रेड्स आती हैं, बिस्किट्स पड़े होते हैं हमेशा, you've टेकन दैट फॉर ग्रांटेड। आपने आर्मी को, नेवी को, एयरफोर्स जो इंडिया की सिक्योरिटी कर रहे हैं, आर्मी ऑफिसर्स, आपको पता है हाँ इंडियन आर्मी यहाँ पे होती है, नेवी यहाँ पे होती है, एयरफोर्स यहाँ पे होती है, एंड बिकॉज ऑफ देम वी आर सेफ राइट नाउ सिटिंग इन आवर होम। आई हैव टेकन, बट आई हैव नेवर सेड थैंक यू टू देम। लिखा नहीं, सोचा नहीं, बोला नहीं, तो लिख लो नाम।
आपके पास कितने कपड़े हैं, आप हर आपका ईच पीस ऑफ क्लोथिंग वॉज बॉट फ्रॉम मनी। चाहे आपको गिफ्ट मिला तो उस बंदे ने भी कहीं ना कहीं पैसे खर्च किए, बट यू हैव टेकन बिकॉज आपको उसका कलर ना पसंद आया हो, साइज ना फिट हो, एनी रीजन, बट यू हैव टेकन दैट फॉर ग्रांटेड। एंड दैट आज के दिन पे वो ऐसे ही बस साइड में पड़ा होके, फोल्ड होके जैसे मर्जी साइड में पड़ा हुआ। आपकी सॉक्स हो गई, फ्रॉम फ्रॉम द स्मॉलेस्ट, सॉक्स हो गई, ज्वेलरी, आपको पता है कोई एक पीस ऑफ ज्वेलरी है, यू हैव टेकन दैट फॉर ग्रांटेड। स्टेशनरी है, वेरी गुड, आप पेन्स आपके ऐसे ही पड़े होते हैं, एंड यू हैव, आपको नहीं पता, आप बहुत फ्रिक्वेंटली पेन घुमाते रहते हो, यू हैव टेकन दैट फॉर ग्रांटेड। आपका फ्रिज हो गया, आपके पर्सेस हो गए। तो मेक अ लिस्ट इन योर कॉपी। कॉइन्स हो गए, इयररिंग्स हो गए। आई कैन सी कॉइन्स में आई हैव, that is my area where I should work, because I think I have taken coins for granted a lot. Think about your own thing. मोबाइल फोन स्टार्टिंग में आया था तो बड़े प्यार से हम उसको ऐसे रखते थे, आज हम कभी कभी उसको ऐसे बेड पे फेंक देते हैं। आई हैव टेकन दिस फॉर ग्रांटेड। जस्ट राइट इट डाउन कि आपको पता होना चाहिए। बुक्स हो गई, बुक्स को कैसे, बुक्स आपने यूज बहुत की है ना, आपको बहुत गाइडेंस भी दी है बुक्स ने, बट आप नाउ यू आर टेकिंग दैट फॉर ग्रांटेड। मोबाइल के चार्जर्स हो गए, वंडरफुल। Just look into your life कि there are a lot of things that we have also taken for granted, and when we think कि when we magic book simple कहती है when you're taking things for granted, that is when the negativity starts coming in. आप अपने करियर वर्क वर्क लाइफ में भी देख सकते हैं सारी चीजें। एंड नाउ कीपिंग दिस ऑल दिस इन माइंड एंड इन फ्रंट ऑफ यू, एक बार अपनी लिस्ट दोबारा पढ़ना, and just go through your list and see the vast variety of things that are actually present over there. So when we start being grateful for these things also, चाहे वो सोच में, बोल के, फील करके, जब इन चीजों के लिए you start being grateful, you will start seeing an abundance in your life. So now keeping this thing in mind, your next thing is to go into the chapter today, magical way out of negativity. Go into that. एंड आप देखना आपके अगर लाइफ में कोई पेन पॉइंट्स होंगे ना, तो वो भी इन्हीं चीजों से रिलेटेड होंगे, आगे जाके आपको दिखेगा कैसे। तो आज का हमारा असाइनमेंट था कि अवेयरनेस लाना, एंड नाउ इन चीजों को दिमाग में रख के हम इस चैप्टर पढ़ेंगे आगे जाके मैम के साथ, एंड उस चैप्टर में देखेंगे व्हाट न्यू थिंग्स कैन ओपन अप, कि हम ये चीज पता तो चल गई, अब इसका करना क्या है। ठीक है, तो थैंक यू ऑल। अश्विन मैम, सो गुड मॉर्निंग मैम। Thank you very much, Peter ji. Good morning, everyone. Good morning, good afternoon, good evening, and welcome. Welcome to Very good morning, Good ma'am. morning, Very ma'am. good Good morning. morning, Happy ma'am. Good morning. morning. Good morning, ma'am. Good morning, Morning, ma'am. ma'am. Morning, ma'am. Good morning, Ma'am. ma'am. Morning, Good ma'am. morning. Morning, madam. Happy Good morning. morning, ma'am. Good Good morning, morning. ma'am. Good Good morning, morning. ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, Good ma'am. morning. Happy. welcome. Very good Welcome, morning. welcome. Very good. And today is the day Good we morning, begin. Good morning, and thank you for being here. Happy birthday, happy Good anniversary, morning, ma'am. and lots of love to each and everyone for being here, being on a Saturday, being on a Sunday, and really, it really means a lot because you are how much you are committed to be on time. Like Saturdays तो सबके लिए ही है ना? Sundays भी सबके लिए, everyone is working, तो सबके लिए छुट्टी होती है या working day होता है, whatever. But उन सब कंफर्ट्स को इग्नोर करके, बिकॉज ऑब्वियसली दैट्स बीइंग देयर इज अ कंफर्ट जोन, आप अपने सपनों के लिए कमिटेड हो, सपनों के लिए जागे हो, सपनों के लिए प्रैक्टिस करने को तैयार हो, सपनों के लिए आप ऑन टाइम यहाँ पर बिल्कुल रेडी टू बिगिन हो। दिस इज व्हाट शोज योर कमिटमेंट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग दैट कमिटेड पर्सन, बिकॉज सपने सिर्फ उनके पूरे होते हैं जिनकी आंखों में, जिनके जुनून में, कहते हैं ना जमीर में शिद्दत होती है। और शिद्दत किसी दिन, किसी टाइम, किसी कंफर्ट जोन का
मोहताज नहीं होता है। शिद्दत शिद्दत होती है, शिद्दत होती है मतलब जब सोए हुए तो है ही, जागे हुए भी तुम्हारी आंखों में सपने इतने पैल्पेबल है, इतने ज्यादा जुनून के साथ आपके साथ जिंदा हैं वो सपने। तो एंड उसके लिए कुछ भी, मुझे कुछ भी मिलेगा। लाइक आई रिमेम्बर वंस आई यूज्ड टू हैव सो मेनी ड्रीम्स, मतलब कुछ कुछ सपने ऐसे थे जो ये बनना है, ये पाना है, ये करना है। एंड कैसे मतलब आई आई रिमेम्बर दोज डेज, उस जुनून में कैसे मैं पागल होती थी कि मतलब इसको ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है। मतलब बोलना फील करना तो जरूरी है, एक्शन में भी रहना जरूरी है। मतलब रात को 2-2 3-3 बजे तक काम करना, एंड फिर सुबह मॉर्निंग में, मतलब अगर अगर किसी एग्जीबिशन इवेंट्स में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो सुबह मॉर्निंग में वहां पे अगर सपोज 9 बजे इवेंट स्टार्ट है तो 4 बजे जाकर खड़े हो जाना, पूरा इवेंट कैसे हो रहा है, कैसे काम कर रहा है, सब चीज बराबर है। एंड हाउ मच इट वाज देयर। लाइक अगर मुझे सफल होना है या मुझे ये चीज की प्राप्ति करनी है, चाहे वो कोई अवार्ड है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो कोई प्रॉपर्टी है, चाहे वो रिश्ता है, कुछ भी है, वो मेरा जुनून है, मेरी शिद्दत है, मेरा सपना है। अब उसके लिए अगर मैं सोचूं कि मेरे को अपने कंफर्ट जोन से बाहर ना जाना पड़े और मुझे बैठे बैठे झोली में सब कुछ मिल जाए, ऐसे नहीं होता है ना। आपको कुछ भी चीज चाहिए तो आपको कुछ तो उसके लिए एक्स्ट्रा करना होता है। एक्स्ट्रा मतलब चाहे इतना ही करना हो कि आपको सुबह जल्दी उठना है, जल्दी प्रैक्टिस करनी है, अभी आप 1 घंटा प्रैक्टिस करो, आपको 6 घंटा प्रैक्टिस करनी होगी। अगर वो शिद्दत है आप में, वो जुनून है आप में, एनीथिंग इज अचीवेबल। एंड आई वुड से एवरीथिंग इज अचीवेबल। क्या इस धरती पे ऐसा क्या है? सब कुछ इंसान ही तो, देखा जाए तो सब तरफ इंसान ही तो है। अगर उसको एक आइलैंड मिल सकता है तो आपको भी मिल सकता है। अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है तो आप भी बन सकते हो। अगर वो मिलियनर है तो आप भी हो। हर कोई है, पर उसमें और आप में फर्क क्या है? सिर्फ दो चीजों की, सिर्फ दो चीजों का फर्क है। क्या? नंबर एक नॉलेज, नंबर एक नॉलेज का ठीक होना भी बहुत जरूरी है ना। हमें अंधाधुंध नहीं भागना, हमें सही फॉर्मूले के साथ भागना है हमेशा। तो नंबर एक नॉलेज, नंबर दो प्रैक्टिस। मतलब कि आप कितना जुनून में शिद्दत से वो प्रैक्टिस करते हो कि मतलब मुझे वहां तक पहुंचना ही है, पहुंचना ही है, पहुंचना ही है। और जब हम इन दोनों चीजों को पकड़ के आगे चलते हैं मैजिक बुक के थ्रू, तो ये हमारी जिद नहीं है, ये हमारा पागलपन नहीं है, ये हमारा सच में सरेंडरिंग है अपने सपने के लिए। और उस सपने तक पहुंचने के लिए हमारी सरेंडरिंग है लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड के लिए, कि हम शुक्रगुजार होके पॉजिटिव होके आगे बढ़ रहे हैं, है ना। हम किसी पागलपन में या किसी एक होता है जुनून को पागलपन भी बोला जाता है, तो हम किसी पागलपन में नहीं बढ़ रहे हैं, है ना। हम एक शुक्राने में आगे बढ़ रहे हैं, एंड दैट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड। कि आपको ये भी पता है चीज क्या चाहिए, क्यों चाहिए, हाँ, और आप बढ़ने के लिए शिद्दत से तैयार भी हो, प्रैक्टिस में भी तैयार हो। तो हाउ मेनी ऑफ यू रियली अंडरस्टैंड एंड आर रेडी फॉर इट? बिकॉज अच्छी समझ होना, अकल होना, नॉलेज होना और उसको प्रैक्टिस करने का जुनून होना, दोनों चीजें मिलकर आपको आपको जादू के रेलम में अंदर ले जाती है। मतलब जो भी वो जादू का रेलम है। एंड आई एम टेलिंग यू इट हैपेंस। मतलब मैंने लाइफ में इतनी बार ये जादू होते हुए देखा है। और उस समय ना मेरा मतलब ये एक्चुअली में जब कोई चीज चाहिए 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 चाहिए, तुम पूरी प्रैक्टिस कर रहे हो, ब्रेक डाउन्स भी आ रहे हैं, ब्रेक थ्रूज भी हो रहे हैं, पर तुम लगे हुए हो प्रैक्टिस में, लगे हुए लगे लोगे, वो चीज तुम्हारे सामने प्रकट हो जाती है, प्रकट। और तुम्हारा मुंह ऐसा खुलेगा खुला रह जाता है। So I will invite some of our participants also, like they are sharing, and कितना अजीब तरीके से ये यूनिवर्स अपना वो तालमेल बिठाता है और अपना क्या कॉन्स्पिरेसी करता है, मुझसे कॉन्स्पिरेसी करता है, और कैसे तुम्हें तुम्हारे सपनों तक ले जाता है। मैं तो अपने शेयर करूंगी, बट आई विल लव टू इनवाइट समवन वेरी स्पेशल टुमारो मॉर्निंग, कि उन्होंने कैसे, और जब वो उन्होंने मुझसे शेयर किया मेरा मुंह खुला खुला रह गया ऐसे। मतलब समथिंग आई हर्ड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि ऐसे भी हो सकता है। एंड दिस इज हाउ ही हैड अ ग्रेट ग्रेट ब्रेक थ्रू इन हिज करियर, इन हिज वर्क लाइफ। एंड कैसे उन्होंने, क्योंकि कल वर्क लाइक मैजिक था तो इसी कॉन्टेक्स्ट में शेयरिंग थी कि कैसे उन्होंने सिर्फ फॉर्मूला ठीक से फॉलो किया, और आज जो वो कमा रहे हैं, जिस कंपनी के अंदर उनको जो भी ब्रेक थ्रू मिला है, हाउ मच इट्स अ ड्रीम ड्रीम ड्रीम। अपने सपनों की चीज को पाने के लिए उन्होंने क्या क्या प्रैक्टिसेस करी हैं। सो वी विल टॉक टुमारो विद सम शेयरिंग, सो थोड़ा ठीक टाइम पे आ जाना। एंड टुडे, अगर आपको लगता है कि आप अपनी जिंदगी में सपनों तक पहुंचते पहुंचते रुक जाते हो, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, या कई बार बन ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल अटके पड़े हैं, बहुत टाइम से शादी अटकी पड़ी है, बहुत टाइम से बच्चा होना अटका हुआ है, बहुत टाइम से प्रॉफिट्स आने अटके हुए हैं, बहुत टाइम से जॉब मिलने अटकी हुई है, बहुत टाइम से खुश रहना चाहते हो, किसी हॉलीडे पे जाना चाहते हो, कोई चीज खरीदना चाहते हो, वो अटकी हुई है, घर बनना, घर का कई लोगों को घर बनाना होता है, कई लोगों को गाड़ी खरीदनी होती है, जो भी काम है आपका, जो भी अटका हुआ है, तो आज पहले तो आपको लिस्ट बनानी है कौन कौन से एरियाज में आपको नेगेटिविटी आई हुई है। जैसे अभी आपने मॉर्निंग में लिस्ट बनाई ना, वही ऑलमोस्ट सेम ही एरिया होंगे जहां जहां पे अपनी चीजें ग्रांटेड ली है, वो तो ऑब्वियसली आपने लिस्ट बना ली। पर कहाँ कहाँ पे आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है? इट कैन बी एनी रिलेशनशिप, इट कैन बी
हेल्थ, इट कैन बी एनीथिंग, पैसों की दुनिया में भी देखो। और अब हम आज इस चैप्टर के थ्रू समझेंगे कि उस नेगेटिविटी से बाहर कैसे आना है। क्योंकि है, देखिए समझिएगा इस बात को, अगर आप न्यू कमर हैं, हम क्या बोलते हैं न्यू कमर मतलब आप में से काफी लोग हो सकता है पहली बार, और मैंने देखा है वैसे ग्रुप में आप में से काफी लोग पहली बार ही कर रहे हैं। कितने लोग पहली बार कर रहे हैं मैजिक बुक हमारे साथ? पहली बार बोलो यस, यस यस यस। तो मतलब बस पहली बार वाले जो है यस कर दो। तो मैंने वो एक बार ग्रुप में मैंने कुछ देखा था कि मतलब कितने लोग पुराने वाले हैं, कितने फर्स्ट टाइमर्स हैं। तो मेरे मोस्टली मेरे को 50% फर्स्ट टाइमर्स ही दिखे थे। तो मतलब तो मैंने कहा ठीक है, फिर हम लैंग्वेज भी वो यूज करेंगे जो कि फर्स्ट टाइमर्स को समझ आ जाए। क्या हम बोलते हैं कि अगर हमारी जिंदगी में कुछ रोशनी की हमें जरूरत है, तो पहले हमें अंधेरा तो एक्नॉलेज करना होगा ना, कि मेरी जिंदगी में नेगेटिविटी है। जैसे चैप्टर बोल रहा है कि नेगेटिविटी तो है, डार्कनेस तो है ना। आपकी जिंदगी में कोई भी ब्रेकडाउन्स तो होंगे ही ना। मतलब जरूरी तो नहीं कि अगर हम कह रहे हैं कि मिलियनर माइंडसेट में आना, अबंडेंस माइंडसेट में रहना है आपको, तो अभी तो हम वहां तक पहुंच रहे हैं, पर अभी कहाँ हो? अभी तो किसी स्कैरसिटी माइंडसेट में, नेगेटिविटी में आप हो सकते हो ना। अब नाउ इफ यू आर अ फर्स्ट टाइमर, तो आपको समझ नहीं आएगा कि अगर मैं ये वर्ड्स बोल रही हूँ कि अबंडेंस में रहना है, अबंडेंस में रहना है, तो आपको बार बार सोचना बोलना बेशक अबंडेंस है, पर आपको कई बार ये अंधेरा, ये नेगेटिविटी पीछे भी खींचता है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री दैट? कि पीछे चाहे हम जितनी मर्जी कोशिश कर ले, पॉजिटिव बोले, पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव हाँ अपनी बातों में वर्ड्स यूज करें, पर ये वर्ड्स अगर मैं कह रही हूँ आप अपने आप को हेल्दी हेल्दी फील करो, बट कई बार आपको कोई इलनेस या कोई डिजीज पीछे की तरफ भी खींचती है। तो हमें फिलहाल तो एक्नॉलेज करना है ना कि हमारी लाइफ में नेगेटिविटी है। और अंधेरे से डरने की जरूरत नहीं है, अंधेरे से बचने की जरूरत नहीं है। हाँ, रोशनी की तरफ जाने के लिए आप इंस्पायर हो रहे हो, वो जरूरी है। ठीक है, तो अब ये फोटो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी का रूप है जो हम बात करते हैं हमेशा अपने मैनिफेस्टेशन की दुनिया में, कि आप इस समय जहां भी हो, वहां पे जितना भी डार्कनेस है, जो भी नेगेटिविटी है, इट्स ओके। द मैजिक बुक जादू विल ओपन अप द डोर टू द वर्ल्ड ऑफ लाइट। तो आप में से कितने लोग इस नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में जाने को तैयार हो, इस डार्कनेस से लाइट की तरफ जाने में तैयार हो? से यस, या बोलो आई एम रेडी। तो अगर आप रेडी हो तो ध्यान से इस चैप्टर की प्रैक्टिसेस को सुनना, बहुत ही डीप प्रैक्टिसेस है और कमाल की प्रैक्टिसेस है। नेगेटिविटी से मतलब द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी, 7वां दिन, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। जादुई तरीका है, ओके। अब इस पे कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप तरीका सीखो और काम करना शुरू करो। आप बोलोगे कितना, जितने लोग ये बोलते हैं मैडम मेरी जिंदगी बड़े नेगेटिव लोग हैं, मेरी जिंदगी बड़ी नेगेटिव सिचुएशंस है, मेरी हेल्थ पे, भाई अब प्लीज आज के बाद ना बोलना बंद कर देना। जब भी कोई नेगेटिविटी दिखे, ये बस जादुई तरीका इस्तेमाल करना है। मैं भी सीखती हूँ, आप भी सीखिए, पढ़े। 7वां दिन, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। बहाउल्लाह, बहाई संप्रदाय के फारसी संस्थापक। तो क्या कह रहे हैं? इफ यू आर ग्रेटफुल, देन यू आर ग्रेटफुल इन ऑल द कंडीशंस, ऑल द सिचुएशंस। अब कैसे, मतलब आप जब बीमार हो, आपकी बहुत परेशान हो रहे हो, तब भी आप हाय हाय नहीं कर रहे, आप कह रहे हो वाहेगुरु वाहेगुरु, थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया, शुक्राना शुक्राना, जो भी कर रहे होगे पता नहीं। कल जैसे हमने ट्रिपल एम सेशन के अंदर एक गाना बनाया था। गाना मतलब कि जो आपका फेवरेट गाना है ना, जो धुन आपके मुंह पे अक्सर चढ़ी रहती है, चाहे वो कोई भजन हो, आरती हो, कोई गाना हो, आपने उसकी ट्यून के अंदर ये शुक्राना सेट करना है। जो शुक्र, कितने लोगों ने किया होमवर्क? ट्रिपल एम में दिया था, क्योंकि यहाँ पर 1 घंटे में कितना बता, मतलब जितना भी बताओ, कई कई प्रैक्टिसेस बहुत फास्ट होती हैं, इफेक्ट लेती हैं, तो इसलिए हमें भी ज्यादा टाइम चाहिए होता है। तो जिन्होंने किया वही सेम, क्या कि आपके चाहे घर में लड़ाई पड़ रही है, पति डांट रहा है, सास डांट रही है, बच्चों से लड़ाई हो रही है, पर आपने क्या करना है? देखो, जो हमारी पुरानी कंडीशन है उसकी वजह से तो हम कृतघ्न या अनग्रेटफुल या कंप्लेनिंग या नेगेटिव हो सकते हैं। अब कल का चैप्टर ही यही था कि आपने सारा दिन चीजें ढूंढनी है टू बी ग्रेटफुल फॉर। अब आपने धीरे धीरे उसको गाने में डाला। कल हमने बोले प्रैक्टिस की थी अपने एमएमएम प्रैक्टिस में, बाकी लोग भी कर सकते हैं अपने आप से। तो आपने उसको गाने में डाला, अब उस गाने को अपनी जुबान के ऊपर चढ़ा दो, चढ़ा दो। अब आप हर समय उसी को गुनगुना रहे हो, आप जो भी चीजें देख रहे हो उसकी ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, और हमेशा उसी धुन में, बस कहते हैं ना उस धुन में, ये बंदा तो उसी धुन में लगा रहता है, तो आप उसी धुन में लगे रहो। ओके, अब उससे क्या होगा? क्यों? क्योंकि आप अब ग्रेटफुल की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ग्रेटफुल व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। जैसे कि ब्रेकडाउन हाँ आते हैं, मुझे भी आते हैं, आपको भी आते होंगे। छोटी छोटी बातों में ब्रेकडाउन आ जाते हैं। आप सड़क पे जा रहे हो, आप कैब में जा रहे हो, आप कुछ भी है ना, ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन आने से पहले आपसे पूछेगा थोड़ी ना कि आ जाऊं
आ जाते हैं अपने आप। कितने लोग एग्री करते हैं कि आप सोचते भी नहीं हो, आप चाहते भी नहीं हो, तब भी ब्रेकडाउन आ जाते हैं लाइफ में। ब्रेकडाउन का मतलब होता है प्रॉब्लम्स, नेगेटिविटी, है ना, अपने आप आ जाती है कुछ कुछ चीजों के अंदर। अब मैं बोलूं कि अरे इसमें तो मैं बड़ी चिंता में हूँ, बड़ी फियर में हूँ, बड़ी मुश्किल में हूँ, तो फिर मैं ग्रेटफुल तो नहीं होंगी ना उस समय, मैं तो कुछ और हूँ। अब चाहे संबंधों की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो, या नौकरी की समस्याएं हो, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। अब जैसे सुबह हमने प्रैक्टिस करी अभी, है ना, 6 से 6:30 में, कि लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी मतलब आपके पास चीजें हैं, या तो आप उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, या आप नेगेटिव बोल रहे हो उसके बारे में। दोनों ही केसेस में आप कृतज्ञता तो नहीं कर रहे ना। तो कृतज्ञता की कमी के कारण आपकी लाइफ में जो भी अभी सिचुएशंस हैं, रिलेशनशिप हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप हो सकते हैं, देखो कहाँ कहाँ पे नेगेटिविटी है, अपने एरियाज देखो, पढ़े। यदि हम अपने जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही हम उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। चीजों को नजरअंदाज करना नकारात्मकता का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जब हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीजों को नजरअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम हो जाता है। एज सिंपल एज दैट। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि अगर आपको पैसों की दुनिया में चमत्कार चाहिए तो आप सिर्फ पैसों में ही शुक्राना करो। हाँ, अगर आप फोकस्ड, जो कहते हैं फोकस्ड ग्रेटिट्यूड, एक होता है जनरल ग्रेटिट्यूड जो हम सभी चीजों के लिए कर रहे होते हैं, एक होता है फोकस। जैसे अगर आपने कभी अपना ट्रीटमेंट कराया होगा, तो एक होता है जनरल फिजिशियन, है ना, जनरल फिजिशियन आपके ओवरऑल हेल्थ को संभालता है। एक होता है कि आपको सिर्फ हड्डी की ही प्रॉब्लम है तो आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओगे, सिर्फ दिल की ही प्रॉब्लम है तो आप किसी कार्डियो सर्जन के पास, वो जो भी होते हैं दिल वाले जो होते हैं, उन हार्ट सर्जन के पास जाओगे, है ना। आंखों की ही प्रॉब्लम है तो आप किसी आई सर्जन के पास जाओगे। ये कहते हैं फोकस्ड डॉक्टर्स। ओके, तो हम दोनों तरह की प्रैक्टिस करते हैं। हम इस समय जनरल तो कर ही रहे हैं, पर हम जैसे फोकस भी करते हैं एक एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, या पर्टिकुलर किसी नाड़ी पे, नस पे, बीमारी पे, कि यहीं पे तुम्हारे को पेन ज्यादा है तो चलो इसी पे फोकस कर जाओ। तो अब आपने क्या करना है, जिंदगी में जनरल ग्रेटिट्यूड अगर आपका अच्छा होगा ना, तो हो सकता है आपका जनरली अच्छा ही चल रहा हो। अगर आप अपनी सेहत को संभाल के रखते हो, अच्छा करते हो, तो आपको क्यों बीपी की प्रॉब्लम आएगी। आप अच्छा खा रहे हो, अच्छे सेहत बना रहे हो, आप अगर जनरल ग्रेटिट्यूड आपका अच्छे क्वांटिटी में है, तो जनरली आपकी चीजें हैंडल्ड होती हैं। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री कि जनरल मतलब हर चीज के लिए ग्रेटफुल हो। आप सड़क के लिए ग्रेटफुल हो, आप सेब के लिए ग्रेटफुल हो, आप अपने हाथों के लिए ग्रेटफुल हो, आप आंखों के लिए ग्रेटफुल हो। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी पॉजिटिव है ना। तो जब आपकी एनर्जी पॉजिटिव ही है, तो हो सकता है आपको ये स्पेशल बीमारियां कि पैसों में कर्जे आ गए, या कोई हड्डी या बीमारी कोई जैसे होती है, या कोई रिश्ते में प्रॉब्लम, ये मोस्टली आएंगी ही नहीं। अगर आप एक बहुत लंबे तक समय तक टेकन फॉर ग्रांटेड ना लेकर चीजों को ग्रेटफुली लेते हो, क्योंकि आप पॉजिटिव एनर्जी में रह रहे हो, तो आप चीजें भी पॉजिटिव अट्रैक्ट करोगे। जिन जिन को फोकस ग्रेटिट्यूड की जरूरत होती है, जनरली वो या तो कुछ पास्ट में या कुछ बहुत पहले टाइम के भी उनके पाप अवतरित हो जाते हैं। पाप मीन्स नेगेटिव थिंग्स अवतरित हो जाती हैं, तो फिर इनको फोकस करके संभालना पड़ता है। और मैंने नोट किया है 80% से ज्यादा लोग, कई बार फोकस्ड ग्रेटिट्यूड की जरूरत उनको पड़ती है। क्यों? क्योंकि जनरल तो उन्होंने अभी भी शुरू किया है ना, पिछले 3-4 सालों से ही शुरू किया है, और जो अभी उनको भुगतना पड़ रहा है वो उनके कई बार बहुत पुराने पुराने फोकस्ड पाप भी होते हैं। तो अब आपने अपने जिंदगी में देखना है कि आप नेगेटिव एनर्जी, चाहे वो जनरल हो चाहे वो फोकस्ड हो, दोनों ही केसेस में आपको पहले भर भर के शुक्राने तो शुरू करने ही करने हैं, भर भर के, हर चीज के लिए। अभी फिलहाल हर चीज के लिए शुरू करो, ठीक है, ताकि मैक्सिमम क्वांटिटी आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाए। आगे। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उस पर केवल तभी गौर करते हैं जब शरीर बीमार हो जाता है या इसमें कहीं चोट लग जाती है? क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे सिर्फ तभी महत्व देते हैं जब आप सुनते हैं कि छटनी होने वाली है? क्या आप हर माह मिलने वाले वेतन या तनख्वाह के लिए हर बार कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे नजरअंदाज कर देते हैं? जब हर संबंध सुचारू ढंग से चलता है, तब क्या आप परिजनों के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उनके बारे में दूसरों से तभी बातचीत करते हैं जब संबंधों में समस्याएं आ जाती हैं? जब आपकी कार अच्छी तरह चल रही होती है, तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उसके बारे में तभी सोचते हैं जब वह खराब हो जाती है?
नॉर्मली हम में से ज्यादातर लोग अपना अपना सिस्टम देखो। क्या आप रोज मंदिर जाते हो, पूजा करते हो, शुक्राने करके आते हो, या जब तुम्हारे बच्चों के पेपर आते हैं, कोई बीमार पड़ जाता है, तभी तुम मन्नतें मांगने जाते हो मंदिरों गुरुद्वारों में? एवरीबडी जस्ट से यस। मतलब अपने आप को चेक करो ना, कि बच्चों के पेपर आ गए, कोई मुसीबत आ गई घर पे, तो जाके भगवान पे चलिए रख रहे हो, वहां पे जाके मत्थे टेक रहे हो, वहां पे जाके धागे बांध रहे हो, कि मतलब कोई जरूरत पड़ गई तो तुम जा रहे हो शुक्राने करने के लिए। हाँ, या कोई मुश्किल आ गई तो आप भगवान भगवान हे भगवान मुझे बचा ले करना शुरू हो गए हो। पर रूटीन में जब सब कुछ ठीक चल रहा है, तब भी क्या आप जाते हो उतनी शिद्दत से गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, और जाकर इतनी कृतज्ञता करते हो जब रूटीन में सब कुछ ठीक चल रहा है? कई बार ना स्पिरिचुअलिटी में कहा जाता है भगवान को ना आपको मुसीबतें तब इसलिए देनी पड़ती हैं ताकि आप उनको याद करो। उनको याद करो, उनके शुक्राने करो। वरना अगर नॉर्मली सब कुछ वो दे रहे हैं ना, धीरे धीरे उनको भी इग्नोर कर देते हो। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट, मतलब यू एग्री टू दैट, एग्री एटलीस्ट, कि एग्री टू दैट, कि मतलब हाँ होता है ऐसा कभी, मतलब सब कुछ, और जितना ज्यादा अच्छा होगा, जैसे कि तुम्हारा बहुत ही बढ़िया चल रहा है, मतलब कि कमाल का बिजनेस, कमाल के रिश्ते, कमाल की लाइफस्टाइल, वाह वाह वाह, मतलब पार्टियां, सेलिब्रेशंस, ये उस समय तो कई बार भगवान को हम बिल्कुल ही भूल जाते हैं। उस समय तो वो भगवान क्या, जो निरंकार तो भूल ही जाता है, अहंकार ऊपर हो जाता है लोगों का, कि देखा मैंने कितना अच्छा बिजनेस चलाया, मैंने कितना अच्छा, और तभी गिरते हैं दोबारा नीचे जाके, क्योंकि भगवान को इनको दिलवाना पड़ता है ना अपनी याद फिर से। तो याद मतलब किसी भी चीज के शुक्राने की याद। दिस इज हाउ ह्यूमंस आर फॉर्म। तो हम क्यों मुसीबतों की वेट करते हैं, हम क्यों समस्याओं की वेट करते हैं? हम अकलमंद अगर होते हैं, भगवान ने इतनी अच्छी अक्ल दी है, पहले से ही अपनी कृतज्ञता को फॉलो कर लो ना, हर चीज में पहले से जय जयकार कर लो ना। आगे। क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं या फिर आप अपने जीवन को नजरअंदाज कर देते हैं? चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नकारात्मक विचार और शब्द। हाँ, तो वो वर्ड्स, शिकायत, जो भी आप बोलते हो, सोचते हो, विचार करते हो, या मुंह से बोल भी देते हो कई बार, तो उसी की वजह से क्या होता है, आपके जीवन में धीरे धीरे एनर्जी नेगेटिव होनी शुरू हो जाती है, और फिर क्या होगा, ब्रेकडाउन्स। आगे। इसलिए इसलिए जब आप शिकायत करते हैं तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में और अधिक चीजें ले आता है जिनके बारे में आप शिकायत कर सकें। और हम कई बार इतने नेचुरल होते हैं शिकायत करने के लिए, जैसे ही मौसम की शिकायत कर दी, ओ हो कितनी ठंड पड़ गई है यार, मतलब हड्डियां जम गई है मेरी, तो अब आप बोलोगे मैडम ये तो मैं वैसे ही बात कर रही हूँ। डिपेंड्स, आप सिर्फ बात कर रहे हो कि शिकायत कर रहे हो। और हम कृतज्ञता तो कर ही नहीं रहे स्टेटमेंट के अंदर ना। देखो हम सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, हम सब के सब, मतलब एक ही जैसी हमारी सोच है, मोर और लेस। ये नहीं कि किसी ने ज्यादा शुक्राने कर लिए, ज्यादा प्रैक्टिस कर ली तो उसकी लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट हो गई। अगर हम बिल्कुल ही शुक्रानों में जी रहे होते ना, तो अभी तक तो निर्वाणे मोक्षे तक पहुंच चुके होते सब लोग, अभी तक तो हमारी वहां तक मतलब हो चुकी होती जर्नी। अभी भी हम अटके हुए हैं ना इसी रोजमर्रा के सुख दुख में, और ये रोजमर्रा के चिक चिक में। तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने हमारी सोच में, बोल में कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है जो कि ग्रेटफुल या पॉजिटिव नहीं है। हाउ मेनी ऑफ यू से यस, कि आ जाता है? कभी सड़क के लिए आता है, ट्रैफिक के लिए आ जाता है, कभी कैब के लिए आया, कैब लेट आ गई, आपने कहीं बहुत जल्दी पहुंचना है, ड्राइवर नहीं आया, कैब नहीं आई, या उसने पैसे ज्यादा ले लिए, तो मन में एक बार के लिए भावना आ जाती है, अरे यार इसने तो मुझे लूट लिया, इसने ज्यादा पैसे ले लिया, अरे ये तो आजकल बड़ा खराब हो गया, या ट्रैफिक मिल गया, पता नहीं। कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है लाइफ में जो आपको नेगेटिव के साथ खींच रहा है। अब कुछ ना कुछ आपको चलाना है अपने सिस्टम के अंदर जो आपको हर समय पॉजिटिव की तरफ खींचे, कृतज्ञता की तरफ खींचे। तो यही यही तो खींचना है ना, जिसको हम समुद्र मंथन कहते हैं। वो नहीं कहते एक तरफ राक्षस खड़े, मतलब नेगेटिव लोग खड़े हैं, एक तरफ देवता खड़े होते हैं पॉजिटिव वाले, वो उधर से खींचते हैं, वो उधर से खींचते हैं, वो उधर से खींचते हैं, वो उधर से खींचते हैं। कभी देखा है आपने? वो चल रही है, रस्साकशी चल रही है, मंथन चल रहा है, टग ऑफ वॉर चल रही है। अब आप पे डिपेंड करता है आप किसका पलड़ा भारी करते हो। आगे। यदि आप मौसम, ट्रैफिक, अपने बॉस, जीवन साथी, परिवार, मित्र, अजनबी, कतार में इंतजार करने, बिलों, अर्थव्यवस्था, किसी चीज की कीमत या किसी कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं तथा हर शिकायत के साथ अपने सपनों के जीवन को दूर धकेल रहे हैं। और कई बार ये इतना सबलाइम होता है आप सोच भी नहीं सकते। जैसे कि मैं बता रही हूँ, मतलब मेरे को कल कहीं इमरजेंसी में जाना मतलब पड़ा। वैसे तो मतलब ड्राइवर हो नहीं तो मैं कैब कर लेती हूँ, फिर तो मैंने कैब बुला लिया, और पास ही जाना था इमरजेंसी में। तो उसने मुझे दिखाया कि 219 रुपए। मैंने कहा ठीक है फाइन, तो मैंने कर दी बुक। और जब मैं वहां पहुंची उसने मेरे से 315 रुपए ले लिए, 100 रुपए का जंप। तो मैंने कहा ये कैसे भैया, क्योंकि कैश में पेमेंट थी, तो ऑनलाइन में तो पता भी नहीं चलता, कई बार कट जाते हैं सीधा, तो कैश में पेमेंट थी तो पता चल गया। कहता पता नहीं आपका कुछ हो। मैंने कहा क्यों? जब दिखाया उसने 219, तो आप इतना ज्यादा क्यों ले रहे हो?
और बाई चांस मैंने स्क्रीनशॉट भी ले लिया था उस टाइम पे ना, तो आई हैड अ प्रूफ कि मेरे को 219 ही दिखाए। कहता नहीं, पता नहीं क्यों आजकल 2-3 दिन से सभी लोग बोल रहे हैं इसके प्राइसेस ऐसे दिखा रहा है और बढ़ा के दे रहा है, जो भी है। तो मुझे पता नहीं, आप कंपनी में बात करो। एंड सडनली आई हैड दैट कि यार ये तो थोड़ा सा मतलब जो भी लगा मुझको कि अनफेयर है, कि मतलब इट्स नॉट, आप जो भी दिखा रहे हो उसी को ही लोगे ना, अगर सेम डेस्टिनेशन पे पहुंचा रहे हो तो जो भी था। पर मैंने देखा, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ 100 रुपीज, इट्स अ मैटर ऑफ कुछ तो है अंदर जो काम कर रहा है। कि मतलब इस समय तो क्या है, अगर मैंने मन में सोचा कि अच्छा मैं ग्रेटफुल किस चीज के लिए हो सकती हूँ उस समय, मैं ग्रेटफुल हो सकती हूँ कि आई हैड अ टैक्सी, आई हैड अ ड्राइवर, आई रीच्ड प्रीटी मच ऑन टाइम, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि एक बटन दबाने से टैक्सी आ जाती है। इवन इफ यू डोंट हैव अ कार, डोंट हैव अ ड्राइवर, स्टिल यू कैन रीच प्लेसेस फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ पिकअप फ्रॉम योर होम टू रीच दैट प्लेस फ्रॉम द ड्रॉप पॉइंट। तो कितनी चीजें हैं टू बी ग्रेटफुल फॉर। और मेरे पास फिर भी एक मौका था अगेन अपने आप को नेगेटिविटी में ले जाने के लिए। हाउ मेनी ऑफ यू फेस दैट कि 10 चीजें अच्छी हो रही होती हैं हमारी लाइफ में, फिर भी हम उनको कई बार इग्नोर या कई बार टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। परंतु एक चीज जो हमारे मन माफिक नहीं हुई या हमारे को लगता है अरे यार तो अनफेयर है, और हम उसके लिए सच में नेगेटिव फील कर लेते हैं, चाहे एक सेकंड के लिए ही सही सोच लेते हैं, फील कर लेते हैं, है ना। किसी भी वे के अंदर अब रिलेशनशिप में देखो, पति 10 काम आपके अच्छे कर देता होगा, अगर 2 काम उसने अच्छे नहीं करे, आपकी बात नहीं मानी, हम उसको पकड़ के लड़ाई करने लग जाते हैं। पर जो अच्छे जो बात उन्होंने एग्री करी है, ये ठीक चल रही है हमारी रिलेशनशिप में, हम उसके लिए ग्रेटफुल ही नहीं होते जब तक कि कोई बड़ा कांड ना हो जाए और तुम्हारे को समझ आए कि अरे अब तो ये कितनी जरूरी चीज है। कई चीजें ऐसी होती हैं लाइफ के अंदर। आगे देखें। अब आप समझ चुके हैं कि शिकायत करने, नकारात्मक विचार सोचने या नकारात्मक शब्द बोलने और चीजों को नजरअंदाज करने से आपके जीवन में अच्छी चीजों का प्रवाह रुक जाता है। अब आप समझ चुके हैं कि जब कोई चीज बहुत गलत होती है तो इसका अर्थ है कि आप अनजाने में पर्याप्त कृतज्ञ नहीं हुए। हाँ, मतलब कि अगर आप अभी जो भी लाइफ में आपके ब्रेकडाउन हो रहे हैं, तो आज आपका एडिशनल असाइनमेंट है अपनी लाइफ में जो भी एरियाज में जिस भी तरह की नेगेटिविटी है, कोई भी, इवन एज स्मॉल एज कि आपको एक लॉकर चाहिए और आपको बैंक में अपनी जरूरत के साइज के हिसाब से लॉकर नहीं मिल पा रहा, या आपने कहीं पे प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करनी, या आपको कोई अपने घर आप किराए पे चढ़ाना चाहते हो पर किराएदार नहीं मिल पा रहा, जो भी अपनी जिंदगी के हर एरिया के अंदर ढूंढो नेगेटिविटी क्या है। और अब आपको समझना क्या है, देखिए वो जो भी नेगेटिविटी है, जो भी अंधेरा है, कहीं ना कहीं आपने जाने अनजाने में वहां पे रोशनी स्विच ऑफ कर दी थी, रोशनी आपने स्विच ऑफ करी है। आगे बढ़ते हैं। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मक होना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना करना और दोष मढ़ना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुखी महसूस करना या कोई भी नकारात्मक भावना रखना भी असंभव होता है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है तो कृतज्ञता के जरिए उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। नकारात्मक परिस्थितियां धुएं के साथ गायब हो जाएंगी, जादू की तरह। मतलब ऐसे जैसे लाइक अ पफ ऑफ स्मोक, मतलब यूं फक करके गायब हो जाती है। मेरी जिंदगी में एक चीज थी, मतलब कि कोई नेगेटिव सिचुएशन चल रही थी बिकॉज ऑफ सम रिलेशनशिप, एंड बार बार और मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि इसको सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं, बिकॉज सो मेनी पीपल वर इन्वॉल्व इन दैट, एंड आई एम नो वन, मैं तो आउटसाइडर हूँ। परंतु जो जो उसमें जी रहे हैं उनके बीच में नेगेटिविटी है, पर मेरे पे ये नेगेटिविटी थी कि वो बड़े क्लोज थे, और उनकी लाइफ में अगर कुछ ब्रेकडाउन चल रहा था तो मेरे को कई बार सुनने में या बातचीत करने में थोड़ा सा नेगेटिव, मतलब वरी हो जाती थी, चिंता हो जाती थी। पर हमने क्या करना है, हमने सिर्फ फॉर्मूला को यूज करना है। हम क्या और कुछ कर सकते, जो आप कर सकते हो फिजिकली कर लो, आपके अगर अपने अपने बस में कुछ है तो, परंतु जादू कौन करेगा, ये फॉर्मूला। और जब मैंने इस फॉर्मूला को यूज किया, डट के यूज किया, जो गुड न्यूज आई, कल मी एंड माई हस्बैंड वर डांसिंग लाइक एनीथिंग, वी वर सो हैप्पी सो हैप्पी, और सुबह गुड न्यूज आई और रात तक हम लोग खुशी में नाच रहे थे कि मतलब इतनी कमाल की खबर है। मतलब ऐसा लगा था अंदर से कोई चीज बहुत रोशन हो गई है, मतलब जो एक थोड़ा हल्का सा फियर या नेगेटिविटी सा था, वो सब कुछ जैसे इट जस्ट डिसअपियर्ड लाइक अ पफ ऑफ स्मोक। पर कैसे, विद द प्रैक्टिस, कैसे पढ़े, आगे पढ़े। पहली चीज, आपको नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने की चीजें तलाशनी होंगी, चाहे इसमें आपको कितनी ही मुश्किलें आए। परिस्थितियां चाहे कितनी ही खराब हो, आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज खोज सकते हैं, खास तौर पर तब जब आप यह बात जानते हो
कि आपकी कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थिति को जादू से बदल देगी। वॉल्ट डिज्नी जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे और उन्होंने अपनी फिल्म पॉलियाना में हमें दिखाया है कि यह कैसे किया जा सकता है। डिज्नी की 1960 की फिल्म पॉलियाना में द ग्लैड गेम था, जिसने बचपन में मुझ पर गहरा असर डाला। मैंने बचपन और किशोरावस्था में इस फिल्म का द ग्लैड गेम बहुत खेला। इस खेल में आप खुश रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों की लगातार तलाश करते हैं, खास तौर पर नकारात्मक स्थिति में। नकारात्मक स्थिति में खुश होने या कृतज्ञ होने वाली चीजें खोजने से यकायक समाधान प्रकट हो जाता है। हाँ, तो जितना मर्जी अंधेरा हो, जितनी मर्जी खड्डे हो, जितने मर्जी आपकी टकरे हो रही हो, डजेंट मैटर। टकरे क्यों हो रही हैं, आपको चोटें क्यों लग रही हैं, आप हर्ट क्यों हो रहे हो, क्योंकि वहां पे अंधेरा है ना। इमेजिन करो किसी गहरी गुफा में आप हो, गुफा है और चारों तरफ अंधेरा है, चूहे चमगादड़ खड्डे पुड्डे सब है वहां पर, और आप चल रहे हो, कभी यहाँ गिर रहे हो, कभी यहाँ ठोकर मार रहे हो, कभी कहीं से आवाजें आ रही है, कभी कहीं किसी के डराने की आपको फीलिंग हो रही है, मतलब आपको डर लग रहा है, कोई जानवरों की भी आवाजें आ रही हैं, पर एकदम से आपने वहां पर रोशनी जलाई। आपने एक रोशनी जलाई, एक मशाल पकड़ी, चाहे वो थोड़ी सी रोशनी है, पर वो रोशनी से आपको एटलीस्ट रास्ता दिखना शुरू हो गया। और ये रोशनी धीरे धीरे आपको आगे ले जा रही है, ले जा रही है, और दूर गुफा के एंड में आपको एक बारीक सी एक रोशनी की किरण दिख रही है। और आप उस रोशनी की किरण को पकड़ते 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 कब उस गुफा से बाहर निकल जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इट्स एज इजी एज दैट। पर ये रोशनी बनाए रखना, और इस रोशनी को चलाए रखना, चलाए रखना, चलाए रखना, चलाए रखना। और ये अंधेरी गुफाएं जो नेगेटिविटी की होती हैं, इनसे रास्ता है, बाहर रास्ता है। वी आर सो थैंकफुल टू मैजिक बुक, वी आर सो थैंकफुल टू रॉन्डा बर्न, जिन्होंने इतनी इजी भाषा में हमारे को हमारे ही अंधेरों से बाहर आने के रास्ते दिखाए हैं। अब आप कितनी स्पीड में चलना चाहते हो, कितना ज्यादा चलना चाहते हो, कितनी ज्यादा रोशनी बनाना चाहते हो, अभी अब आपकी प्रैक्टिस है। तो चलिए प्रैक्टिस समझते हैं। और आज का असाइनमेंट है ग्लैड गेम। अभी मैंने पहले बोला नेगेटिविटी की लिस्ट, अब आप बनाएंगे ग्लैड गेम देखने का अपना टाइमिंग, ठीक है। ग्लैड मतलब पोलियाना नाम से मूवी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है इंटरनेट पे। तो देखिएगा, उसमें वो हर चीज के लिए, चाहे उसके मम्मी पापा नहीं थे, बट आई एम ग्लैड आई हैव दिस ब्यूटीफुल मासी टू स्टे विद, आई एम ग्लैड आई, मतलब जो मर्जी सिचुएशंस हो, वो हमेशा, मैं एंड में आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी आई एम ग्लैड की, हमारी अपनी लाइफ की, ठीक है, आफ्टर द सेशन। तो तब तक पर आप ये मूवी देखिए और सीखिए आई एम ग्लैड या ग्लैड गेम कैसे खेलनी है। और कमाल की है ग्लैड गेम, मतलब कमाल के आपके मूड शिफ्ट कर देगी, कैसे कैसे कमाल करती है। पहले आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। वॉल्ट डिज्नी ने पॉलियाना में कृतज्ञता की जादुई शक्ति दर्शाई थी और हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी इसी जादुई शक्ति के इस्तेमाल का तरीका बताया था, जब उन्होंने कहा था, आइए उठें और कृतज्ञ हों, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों। समझ गए ना सब लोग? समझ गए आई थिंक, ठीक है। बोले गौतम बुद्ध, एक मिनट, बोले बोले गौतम बुद्ध गौतम लगभग बुद्ध बौद्ध बौद्ध धर्म, धर्म के हाँ, संस्थापक। उन्होंने जो बोला आप भी समझ गए, है ना। यू हैव समथिंग टू बी ग्रेटफुल और ग्लैड ऑल द टाइम। बुद्ध के शब्दों को अपनी प्रेरणा बना लें और आज ही अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक परिस्थिति को लें जिसे सुलझाना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक हो। इसके बाद कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की तलाश करें। मैं जानती हूँ कि इस अभ्यास को शुरू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन बुद्ध ने आपको ये करने का तरीका दिखा दिया है। अपने कंप्यूटर पर या अपने कृतज्ञता जर्नल में 10 चीजों की सूची लिख लें। उदाहरण के तौर पर आपकी समस्या ये हो सकती है कि आप बेरोजगार हैं और अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद आपको अब तक नौकरी नहीं मिल पाई है। इस स्थिति को जादू से उलटने के लिए आपको इस पर कृतज्ञता के अभ्यास को केंद्रित करना होगा। यहाँ पर आपको समझना है, देखिए मैंने स्टार्टिंग में बताया, एक होता है जनरल ग्रैटिट्यूड, एक होता है फोकस्ड ग्रैटिट्यूड, ठीक है। तो अब हमारे को कोई ब्रेक डाउन है, ब्रेक डाउन मीन्स कुछ प्रॉब्लम या नेगेटिविटी, ठीक है। तो अगर आपको कोई ब्रेक डाउन है, आपकी कोई नेगेटिविटी है, कोई बीमारी है, कोई सिचुएशन है, कोई हालात है, जो भी है, पहले तो उसको उनको लिख लो
कि आपके ब्रेकडाउन्स क्या है। जैसे कि हो सकता है आपको नौकरी चाहिए पर नौकरी नहीं मिल रही, या वो जो आपके आपके जरूरत की नौकरी है या जरूरत की सैलरी है वो नहीं मिल रही फॉर एग्जाम्पल। तो ठीक है, पहले लिख लो। अब वो नेगेटिविटी है, हाँ। अब आपने उसी उसी पर्टिकुलर डोमेन के अंदर, जैसे कि कल हमने जब हमने वर्क लाइक मैजिक किया, हम लोग ग्रैटिट्यूड कर रहे थे, तो वर्क लाइक मैजिक में हमने ये तो देखा कि हम कैसे अपने मैनेजर को बार बार बोल रहे हैं टू बी, है ना, व्हाट आई एम ग्रेटफुल फॉर। पर जब हम लिखते हुए तो हमने देखा कि हमें फोकस करना है इस समय अपने काम के ऊपर। तो मैंने अभी जो काम कर रही हूँ उसके लिए ग्रैटिट्यूड, जब जब मुझे किसी से भी कोई काम मिले उसके लिए ग्रैटिट्यूड, जब जब मैंने किसी को काम दिए उसके लिए ग्रैटिट्यूड, मैं जो जो काम करते हुए अपने टूल्स को यूज करती हूँ उसके लिए ग्रैटिट्यूड, जिन जिन लोगों के साथ मिलकर मैंने काम किए उसके ग्रैटिट्यूड। तो एक पर्टिकुलर सिंपल टॉपिक था काम, उसके अंदर ही ना जाने कितने सारे अलग अलग चैनल्स होते हैं फोकस करने के लिए। अब जब आप ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद समझ आनी शुरू हो जाएगी, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी इफेक्टिव वे टू डू द जनरल ग्रैटिट्यूड एंड फोकस ग्रैटिट्यूड। ओके, और दोनों ही देखो, वो मैंने बता दिया ना, डॉक्टर जनरल कैसे करता है, फोकस वाला कैसे करता है। अब आपने अपने उस प्रॉब्लम पे फोकस करना है कि वो मेरी प्रॉब्लम है, पर फोकस क्या करना है, इस प्रॉब्लम के अंदर, इस अंधेरे के अंदर अब मुझे 10 रोशनियां ढूंढनी है। पढ़ते हैं। आप क्या कह सकते हैं, इसके कुछ उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं। नंबर 1, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है। नंबर 2, मैं कृतज्ञ हूँ कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया है। नंबर 3, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही है और मैं अनुभवी हूँ। नंबर 4, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि ये पहली बार है जब मैं बेरोजगार रहा हूँ। नंबर 5, मैं कृतज्ञ हूँ कि रोजगार के नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नई नौकरियां सामने आ रही हैं। नंबर 6, मैं उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मैंने नौकरियों के लिए आवेदन और साक्षात्कार देते समय सीखी हैं। नंबर 7, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। नंबर 8, मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ। नंबर 9, मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी। नंबर 10, मैं कृतज्ञ हूँ कि नौकरी खोने की वजह से मुझे यह एहसास हो गया कि यह मेरे लिए कितनी अधिक मायने रखती है। मुझे अब तक ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था। तो ये जो 10 ग्रैटिट्यूड या रोशनी ढूंढनी है, ये आपकी अपनी खुद की फाइंडिंग है, ठीक है। इसमें कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता, बस आपने यही लिखना है कि व्हाट आर यू ग्रेटफुल फॉर, ठीक है। और लिख के ही करना स्टार्टिंग में, प्लीज करें। बेरोजगार व्यक्ति की कृतज्ञता के फलस्वरूप वह भिन्न परिस्थितियों को आकर्षित करेगा और उसकी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से जादुई तरीके से बदल जाएगी। दरअसल कृतज्ञता किसी भी नकारात्मक स्थिति से अधिक शक्तिशाली होती है और यह अनगिनत तरीकों से नकारात्मक स्थिति को बदल सकती है। आपको तो बस कृतज्ञता का अभ्यास करना है और जादू होते देखना है। एज सिंपल एज टू अंडरस्टैंड कि रोशनी अंधेरे से ज्यादा पावरफुल होती है। अगर आपके, जैसे मैं कई बार एग्जांपल देती हूँ, आपके किसी भी एरिया में बहुत सारा नेगेटिविटी है, और हो सकता है 10 साल से प्रॉब्लम चल रही है किसी रिलेशन में, किसी हेल्थ में, है ना, या किसी भी मनी के एरिया में। अब आप 1 मिनट के लिए इमेजिन करो कि कोई एक घर है, हाँ, जो पिछले 10 साल से अंधेरे में है। कोई घर है जो पिछले 10 साल से अंधेरे में है, वहां पे लाइटें बंद हैं, सब कुछ बंद है, पर्दे बंद है, सब कुछ अंधेरे में है। अब उस घर में रोशनी लाने के लिए क्या मुझे और 10 साल लगेंगे? अगर वो घर में लाइटें बंद है पिछले 10 साल से और वो अंधेरे में है, तो अगर मैं जाकर बस एक बटन दबा दूं तो लाइट जल जाएगी कि नहीं? यस नो में भी क्या अगर उसके 10 साल का अंधेरे को दूर करने के लिए मुझे 10 साल लगेंगे? नहीं। अगर मेरा फॉर्मूला ठीक है, मुझे पता है कैसे करना है, क्या करना है, तो मेरे को सिर्फ एक बटन दबाने की जरूरत है और वहां रोशनी हो जाएगी। फाइन, दिस इज हाउ यू कैन, जिसको हम कहते हैं ना पफ ऑफ स्मोक, कि एक क्षण में वो चीज वहां से गायब हो सकती है। आप करके तो देखो, ठीक है। रोशनी रोशनी की दुनिया में आप आ रहे हो, रोशनी की दुनिया में रोशनी बनाना सीखो। आइए। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। एक बेटे की अपने पिता से खटपट चल रही है। बेटा महसूस करता है कि वो चाहे जो कर ले, पिताजी कभी संतुष्ट नहीं होंगे।
जैसे कि एक तो आप प्रोफेशनल लाइफ में देख सकते हो, पर्सनल लाइफ में, अपने हेल्थ लाइफ में, सोशल लाइफ में, जहां पे भी आपकी जो भी नेगेटिविटी चल रही है उसको लिख लो। अब जैसे कि यहाँ पे सास बहू का या पति पत्नी का, आप कोई भी बेट समझ सकते हो। यहाँ पे बेटे की अपने पापा से खटपट चल रही है तो बहुत नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव है। घर पे भी नेगेटिव है, शॉप पे भी नेगेटिव है, बाहर भी बहुत नेगेटिव है सिचुएशंस। पर अब क्या करना है, नेगेटिव तो है, हाँ अंधेरा तो है इस रिश्ते में, हाँ अब रोशनी जगानी है। अब बोलोगे कौन भाई जो इस क्लास में आया वही रोशनी जगाएगा ना। भाई मैं हमेशा समझाती हूँ लोगों को कि भाई वेट मत करो कि दुनिया में कौन ज्यादा समझदार है या दुनिया में कौन ज्यादा पॉजिटिव है। आपको ये थोड़ी है कि मैं क्यों करूं, वो करे। ऐसे करके मुंह पे थप्पड़ मार लो अपने चार, क्यों? क्योंकि किसी को तो समझदार होना पड़ेगा ना, क्या आप थप्पड़ खा के समझदार हो जाओ खुद से। कई बार ऐसे लोगों का अहंकार इतना प्रबल होता है कि भाई मैं क्यों करूं, वो करे, मैं थोड़ी ना गलत हूं, वो गलत है। चुप हो जाओ मेरी जान। इफ यू आर कमिटेड फॉर रोशनी देन देयर इज नथिंग बिगर देन योर कमिटमेंट। अगर आपका सपना है कि पापा के साथ मेरे बहुत कमाल के पॉजिटिव फ्रेंडली रिलेशनशिप हो जाए, सपोर्टिव रिलेशनशिप हो जाए, अगर ये सपना है तो ये सपना हुआ है क्यों? क्योंकि वहां पे अभी नेगेटिविटी है, तभी तो आपका सपना है। अगर ये वहां पे अच्छा होता तो सपना क्यों लिखते तुम ये अपना? तो जितने भी आपने सपने लिखे हैं ना, जो आपने पहले दिन पे, आप याद होगा जो जीरो सेशन में हमने सपने लिखे हैं सारे के सारे, वो सपने इसलिए हैं क्योंकि वहां पर कोई ना कोई आपकी नेगेटिविटी है। तो उस लिस्ट को देखने से भी आपकी जो मेजर नेगेटिविटीज है वो अपने आप हाथ में आ जाएंगी, मतलब आपको मिल जाएंगी। तो उनको देख के भी आप अपनी नेगेटिव लिस्ट बना सकते हो। अब बोलोगे मतलब, अरे भाई सपना होगा ही वही ना। आप कहाँ पे रोशनी लाना चाहते होगे? जहां पे अंधेरा होगा। अंधेरे तो आपको ऑलरेडी पता है, इसका मतलब ये है। से यस और नो, समझ गए आप मेरी बात? आगे। नंबर 1, मैं कृतज्ञ हूं कि मेरे जीवन के अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं। नंबर 2, मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूं कि वे मेरी शिक्षा की खातिर इतनी कड़ी मेहनत करते हैं जो उन्हें नहीं मिल पाई। नंबर 3, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी ने मेरे बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया, क्योंकि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारे परिवार का खर्च चलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और धन की जरूरत होती है। नंबर 4, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मुझे बचपन में हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने ले गए। नंबर 5, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी आजकल मुझ पर इतने सख्त नहीं है जितने कि पहले हुआ करते थे। नंबर 6, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मेरी इतनी ज्यादा परवाह करते हैं, क्योंकि यदि उन्हें परवाह नहीं होती तो वे मुझ पर इतनी सख्ती नहीं करते। नंबर 7, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी के साथ मेरे संबंधों की बदौलत ही मैंने ये सीखा कि अपने बच्चों के प्रति करुणा रखना चाहिए और उन्हें ज्यादा अच्छी तरह समझना चाहिए। नंबर 8, मैं पिताजी के प्रति कृतज्ञ हूँ जो उन्होंने मुझे दिखाया कि प्रसन्न चित्त और आत्मविश्वासी बच्चे पालने में प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। नंबर 9, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ जब मैं अपने पिता के साथ हंसता हूँ। कुछ लोग तो ऐसा कभी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास पिता ही नहीं है, और जो लोग अपने पिता को खो चुके हैं उन्हें दोबारा कभी अपने पिता के साथ हंसने का मौका नहीं मिल पाएगा। नंबर 10, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास पिता हैं, क्योंकि कठिन समय के बीच अच्छे समय भी रहे हैं और पिताजी के साथ आगे भी और अच्छे समय रहेंगे। तो यहाँ पे जो हमने सीखा, दैट्स बिटवीन अ फादर एंड अ सन। उसी तरह से आप अपने बेटे के लिए कर सकते हो, अपनी मम्मी के लिए कर सकते हो, बीवी के लिए कर सकते हो, पति के लिए कर सकते हो, पड़ोसी के लिए कर सकते हो, दरानी के लिए कर सकते हो, जेठानी के लिए कर सकते हो, बॉस के लिए कर सकते हो, कुलीग के लिए कर सकते हो। सेम सेम वे। आपने बस वो ब्रेकडाउन एरिया लिखना है और उसके अंदर ढूंढ ढूंढ के 10 कृतज्ञता है। अब 10 तो मिनिमम करनी है, क्यों? क्योंकि हो सकता है आपने कोई कंप्लेंट करी हो, नेगेटिविटी करी हो उस एरिया में, पर अगर आपने कॉन्टिन्यूअली बहुत टाइम से वहां पे नेगेटिविटी करी हुई है तो मेरी जान, कॉपी पेन उठाओ, 2 घंटे के लिए बैठ जाओ। क्योंकि आप जिंदगी भर वहां पे अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे, अपने सपनों से दूर होते रहोगे। इससे तो अच्छा है ना एक बार ही अपने अपना जनरेटर ऑन कर दो। जनरेटर ऑन करने का मतलब कि रोशनी बनाना शुरू करो, है ना? आपके अंदर ये जनरेटर क्रिएटर जो भी बैठा हुआ है, तो अपना, जैसे कि हम लोग इस चैप्टर के बाद मुझे ऐसा जरूर लगता है, हर बार लगता है कि भाई मैं तो यहाँ पे जन्नत जीने आई हूँ, तो नरक क्यों आता है बार 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 बार? लोगों की लाइफ में भी आता है। तो अगर अभी तो हम 2 घंटे का कर ही रहे हैं ना। आप लोग भी अपने अपने 2 घंटे का टाइम निकालो, जो अपने आप से कर रहे हैं तो प्लीज, हमने सुबह सिखा दिया, अभी मैं भी सिखा रही हूँ। तो आप अपने आप से करो। जो लोगों को लगता है कि नहीं, ग्रुप में मास में फोकस करने से उनकी ज्यादा अच्छी कॉन्सेंट्रेशन होती है, वो आते हैं 12 से 2 में। आई एम फीलिंग कि एक
मॉर्निंग 4 o'clock एक इवनिंग 4 o'clock और होना चाहिए, ताकि जो लोग सच में चाहते हैं कि भाई मेरी बीमारी, किसी किसी को तो बहुत भयंकर बीमारियां भी कई बार ब्रेकडाउन्स में होती हैं या कर्जे होते हैं, तो वो लोग बेचारे डर के बैठे हुए हैं। तो मैं कह रही हूँ अभी एक आप देखो 10 मिनट के लिए लाइट ऑन करो, एक बात होती है ना। आप जैसे कोई प्यासा है, उसको थोड़ा सा पानी मिले अलग बात है, पर पूरी पाइपलाइन ही लग जाए तो अलग बात है, टंकियां ही लग जाए तो अलग बात है। उसी तरह से कृतज्ञता हमने शुरू में ही पढ़ लिया था, क्वांटिटी एंड क्वालिटी मैटर्स अ लॉट। आप ये 10 करोगे, रोशनी जरूर जलेगी पक्का, पर 10 को 20 30 40 करते करते कब वही जो जहां पे इस समय आपको सामने एक चुड़ैल दिख रही है वो परी बन के प्रकट हो जाए। आप बोलो है ऐसे हो सकता है? 100% हो सकता है भाई, हो सकता है। आपको कैसे हो सकता है वो मुझे नहीं पता, ऊर्जा मुझे क्या पता जादू काम कैसे करेगा, पर आपको ये पता होना चाहिए ना कि ये नेगेटिव एरिया और उसमें आप ये पॉजिटिव चाहते हो। वो तो हमने पहले ही सपने लिख लिए हैं। तो जो भी अपने सपनों की 50 सपनों की लिस्ट बनाई है हमने, आपको याद होगा ना स्टार्टिंग में हमने लिस्ट बनाई थी, व्हाट्सएप के ऊपर भी बनाई थी। आज से हम वो एमएमएम पे उस पर काम कर, क्योंकि एक एक एरिया के अंदर जहां जहां पे आपका सपना है वहां पे कोई ना कोई नेगेटिव सिचुएशन है। अब उस नेगेटिव सिचुएशन को फोकस करते हुए हम वहां पर अपनी रोशनी प्रकट करेंगे, ठीक है। ग्रेटिट्यूड करना शुरू करेंगे। जैसे किसी का हो सकता है कि उसको लाइफ पार्टनर चाहिए, पति नहीं मिल मतलब पति या पत्नी नहीं मिल पा रहा है, या पति पत्नी है पर उसमें रोमांस नहीं है, उसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसमें इज्जत नहीं है। तो अब आपका ब्रेकडाउन क्या है? पति पत्नी के रिलेशनशिप में लैक ऑफ इज्जत है ना। लैक ऑफ इज्जत को तुम क्या बोलते हो सोच लो। तो मतलब कि वो है। अब आपने ठीक है कि मतलब इज्जत नहीं करते है ना, ये होगा जो भी बात है। अब ये एरिया लिखा हुआ है, हाँ। अब इसको फोकस करो, इसके अंदर रोशनी ढूंढना शुरू करो। अब इसका उल्टा जाना है कि कब कब ऐसा हुआ है कि उन्होंने आपकी बात सुनी है या इज्जत करी है, या इज्जत मतलब जो भी तरीका होगा। तो अब आपने ढूंढना शुरू करना है, और कई बार अकेले ढूंढने में टाइम लग सकता है, तो कोशिश करो कि 4 5 लोगों का ग्रुप बना लो। हम लोग तो ऐसे 100 200 लोगों के ग्रुप में, क्योंकि उसमें दिमाग ना स्पेस में तेज चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि दैट्स अ फोकस्ड ग्रैटिट्यूड स्पेस। तो आप लोगों की जो भी कंसर्न्स हैं बस आप ग्रैटिट्यूड शुरू करो, रोशनी आनी ही आनी है, ठीक है। और टाइम बढ़ा दो प्लीज अपने लिए, ठीक है। आगे बढ़े। पिता के लिए बेटा जब कृतज्ञता की भावनाएं पूरी शिद्दत से महसूस करेगा तो इसके फलस्वरूप उनका संबंध बेहतर हो जाएगा। बेटा अपने पिता के बारे में सोचने और महसूस करने का तरीका बदल देगा, जिससे वो चीज भी बदल जाएगी जो वह अपने पिता से आकर्षित करता था। भले ही बेटा मन ही मन कृतज्ञ हो, लेकिन क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर बेटे की कृतज्ञता पिता के साथ उसके संबंध पर जादुई असर डालेगी। यदि वह अपनी कृतज्ञता को कायम रखता है तो आकर्षण के नियम की बदौलत बेटे को अपने पिता के साथ कहीं बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होंगी और उनका संबंध तत्काल बेहतर होने लगेगा। क्वांटम फिजिक्स क्या बोलते हैं? क्वांटम एंड एनर्जी जिसको हम कहते हैं। क्वांटम मीन्स क्वांटिटी मिनिमम। तो जब आप अपने आप को सूक्ष्म रूप में अनुभव करते हो तो सूक्ष्म रूप में हम सब ऊर्जा ही है ना, एनर्जी है। तो अगर मैं कुछ सोच रही हूँ तो वो मेरे हस्बैंड की एनर्जी वहां तक वो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो जरूरी नहीं कि आपको बोल के करना है या उनके सामने जाके करना है, आप मन मन में या लिख लिख के भी करोगे तो भी यहाँ आप कर यहाँ पे रहोगे, एनर्जी वहां पर ट्रांसफॉर्म हो रही होगी। अब ये कैसे होती है करके देखो आगे। याद रखें, आप कैसा महसूस करते हैं उससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी कृतज्ञता काम कर रही है या नहीं। ये ध्यान रखना, आप आपने जैसे 10 लिखे पर अभी भी आपको गुस्सा आ रहा है, अभी भी आप बुरा फील कर रहे हो, तो 20 और लिख लो, 30 और लिख लो। एक टाइम आएगा जब आप ना थोड़ा सॉफ्ट हो जाओगे, नरम हो जाओगे, और सच में दिल से आप थोड़ा कृतज्ञता फील कर रहे होगे उस इंसान के लिए। तो यानी कि जब आप फीलिंग में कृतज्ञता ले आए हो तो आपका जादू एक्टिवेट हो गया है। आगे। कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद आपको स्थिति को लेकर बहुत बेहतर महसूस होना चाहिए। कृतज्ञता की जादुई शक्ति के सक्रिय होने का पहला प्रमाण ये है कि आपकी भावनाएं ऊपर उठ जाती हैं। इसलिए जब भी आप परिस्थितियों को लेकर बेहतर महसूस करें तो जान लें कि परिस्थितियां बेहतर होने वाली हैं और समाधान प्रकट होने वाले हैं। मतलब कि जैसे आप जो भी सिचुएशन में, जैसे आपको पैसों के लिए हो सकता है कि पैसों की स्कैरसिटी की सिचुएशन है और आपने वहां पे लिखा जो भी नौकरी के लिए पैसों के जो भी आपने पॉजिटिव लिखा, और थोड़ी देर बाद आप डरने चिंता करने या घबराहट की बजाय आप अच्छा फील कर रहे हो, यू आर फीलिंग लाइटर, यू आर फीलिंग बेटर। कितने लोग करते हैं फील जब आप ग्रेटिट्यूड बहुत फोकस करके करते हो, तो आफ्टर प्रैक्टिस यू फील बेटर, यू फील अ लिटिल लाइटर। जब हम लाइटर बोलते हैं ना कि आई एम फीलिंग लाइटर,
तो इसका मतलब ये होता है कि लाइट किसे कहते हैं, रोशनी को, लाइट किसे कहते हैं, हल्केपन को। तो आप हल्का और रोशन फील करोगे, और अगर आप हल्का और रोशन फील कर रहे हो तो इसका मतलब कि जादू एक्टिवेट हो गया है। और अगर आप अभी भी डरे डरे से फील करो तो यानी कि भी और करने की जरूरत है आपको इस प्रैक्टिस को आगे। आप जिस भी नकारात्मक स्थिति को सुलझाना चाहते हो उसका तरीका एक ही है। उस पर केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास तब तक करते रहें जब तक कि आप अंदर से बेहतर महसूस ना करने लगे। फिर आपको बाहरी जगत में भी जादू दिखने लगेगा। देखिए यहाँ पे केंद्रित उन्होंने बोल दिया केंद्रित कृतज्ञता मतलब फोकस्ड ग्रैटिट्यूड, एंड आई एम टेलिंग यू फोकस्ड ग्रैटिट्यूड वर्क्स लाइक जैसे वो एंजियोग्राफी नहीं होती, एंजियोग्राफी मतलब वो अंदर जाके तुम्हारे उस नासूर को या उस स्टोन को या तुम्हारे उस अटकन को निकाल के बाहर ले आती है। मतलब कि इतना कमाल का ये एक्सरसाइज होता है जब आप केंद्रित करके फोकस करके ग्रैटिट्यूड करना शुरू करते हो। जैसे कोई बहुत बीमार है, मतलब कई बार तो मैं कहती हूँ हमारे रिश्तों में कितना होता है, जैसे कि आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे मेरे जो मेरे जानकार है कई बार मेरी बात सुन लेते हैं मेरे क्लोज वाले, और फिर वो ग्रैटिट्यूड फोकस मतलब वो जिनको मैं बुलाऊंगी कल बात करने के लिए, फ्रॉम लास्ट 4 many months ही हैड जॉब बट ही वॉज लुकिंग फॉर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ जॉब, क्योंकि वो उसकी ड्रीम जॉब थी जिसकी वजह से वो इंडिया छोड़कर फॉरेन कंट्री में सेटल हुआ था कि मुझे यही जॉब करनी है। पर वो जॉब उसको मिल ही नहीं रही थी, ना वैकेंसी थी वहां पे, ना उसको जो भी था वो नहीं मिल रही थी, और वो अपनी धुन में अपने काम कर रहा। फ्रॉम लास्ट 1 month ओनली मैंने कहा एक बार के लिए मुझ पर विश्वास कर ले प्लीज, तो जो कर रहा है करता रहा है, पर ये वाला काम कर ले बस एक बार। जो मैंने उसको बोला कि ये फोकस करके बस ये कर दे तू, जो मैं अभी जो भी मैंने यही यही प्रैक्टिसेस बोली, और उसने 1 महीने पहले ही शुरू किया था। और उसने जो भी वो प्रैक्टिस करी 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 करी, कैसे उस कंपनी से खुद उसको कॉल लेटर आया, मतलब वो हैरान इस बात का था कि ये कैसे हो सकता है कि कंपनी खुद उसको अप्रोच कर रही है, और जो उसने ईयरली पैकेज बनाया वो उसके जो जो सैलरी वो एक्सपेक्ट कर रहा था, जो उसका ड्रीम सैलरी था उससे भी ज्यादा है। तो ये कैसे, क्योंकि जादू ऐसे ही होता है यार, जादू ऐसे। पर हाँ जितनी बार भी जादू होता है हर बार अकस्मात होना, अरे बाबा ये कैसे हुआ, अरे वाह कमाल हो गया, अच्छा मत ये जरूर करना है यार, अच्छा लगता है ऐसे करने में। क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है जब हमारी जिंदगी में बहुत सारे जादू होने शुरू हो जाते हैं ना, हम जादू को भी टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हाँ ये तो होना ही था, ये तो होएगा ही, ये तो होगा ही। नहीं नहीं नहीं, ये मत करना। हमेशा उस एक्साइटमेंट में, एंथुजियाज्म में, उस सेलिब्रेशन में, उस जादू को सेलिब्रेट करना, ये हमेशा अपनी आदत बनाए रखना, क्योंकि आगे बढ़ते बढ़ते आपकी जिंदगी में जादू तो होने ही होने हैं। तो ये हैबिट भी बनाए रखना, आगे बढ़े। आप आप जिन 10 चीजों के लिए कृतज्ञ हैं उनकी लिखित सूची इस तरह बनाएं। मैं मैं डैश के लिए बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ, या मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल या आई एम रियली ग्रेटफुल, जो भी आप अपने 10 जो अपने पीछे अगर नहीं समझ आया तो एक बार हिंदी के सारे एग्जांपल्स दोबारा से पढ़ लो, या इंग्लिश में दोबारा पढ़ लो, इंग्लिश और हिंदी दोनों की बुक आपके ग्रुप में है। आगे। और खाली स्थान में भर लें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। यदि आपको अधिक आसान लगता हो तो आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने का वॉल्ट डिज्नी का तरीका भी आजमा सकते हैं। मैं बहुत खुश हूं कि आई एम डैश। वेरी ग्लैड, उसमें वो ग्लैड गेम है, तो आई एम वेरी ग्लैड आई हैव, जैसे कि सपोज आपको पैसे हैं, पैसों में नेगेटिविटी है, तो पैसों की दुनिया में आप अब अपना ग्लैड ढूंढोगे ना। आई एम वेरी ग्लैड आई हैव 10 rupees टू बाय कुरकुरे, आई एम वेरी ग्लैड आई हैव 20 rupees टू बाय नींबू फॉर मेकिंग शिकंजवी, आई एम वेरी ग्लैड। मतलब जो भी आप कर रहे हो और जो भी नेगेटिव, मतलब हाँ उस एरिया में कुछ भी फोकस करके आपने पॉजिटिविटी ढूंढनी है, ठीक है, फोकस करके। आगे। और इस वाक्य को पूरा करते हुए लिखें कि आप किस बारे में खुश हैं। एक बार जब आप उन 10 चीजों की सूची बना लें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो हाँ। नकारात्मकता को बाहर रखने के जादुई तरीके का अभ्यास यह लिखकर पूरा करें। आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो एक बार जब आप ये पूरे 10 पॉइंटर्स लिख लोगे अपने ग्लैड ग्लैड गेम के या थैंक यू के, उसके बाद एंड में आपको जरूर लिखना है क्या, थैंक यू फॉर द, जिसको हम कहते हैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन, या आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब इसका लॉजिक क्या है ये हम 13 चैप्टर में आपको बताएंगे, ठीक है। पर अभी आपने ये करना शुरू करना है, जैसे कि सुबह ब्लेसिंग्स लिखने के बाद आप सिर्फ सोचते थे ना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब आप लिखना शुरू करोगे, आप फोकस्ड ग्रैटिट्यूड करोगे और नीचे लिखना शुरू करोगे, प्रॉपर लिखना है। अभी इनका लॉजिक क्या है वो हम 13 चैप्टर में बात करेंगे आगे। और सिर्फ आज के लिए देखें कि क्या आप कोई नकारात्मक बात कहे बिना एक दिन रह सकते हैं।
यह एक चुनौती हो सकती है, लेकिन यह देखें कि क्या आप पूरे एक दिन ऐसा कर सकते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता कि हम कितनी नकारात्मक बातें बोलते हैं। लेकिन एक दिन अपने शब्दों पर गौर करने के बाद आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। याद रखें, नकारात्मकता और शिकायतों से ऐसी ही नकारात्मकता और शिकायतों से ऐसी ही अधिक चीजें आती हैं, और यदि नकारात्मक शब्द बोलते वक्त आप उनके बारे में जागरूक रहते हैं, तो आप ठहर कर फैसला कर सकते हैं कि क्या आप सचमुच उसी तरह का परिणाम चाहते हैं जिस तरह की बात आप कहने जा रहे हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात सोचते या कहते हुए पाएं, तो यहाँ दी जा रही जादुई लाइफ लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तत्काल रुक जाएं और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। हाँ, तो देखिए कई बार हमारी कंडीशनिंग या जिस तरह से हमारा लाइफ रही है पिछली, तो हम नेचुरली ना कई बार नेगेटिव बात सोच लेते हैं, बोल देते हैं किसी भी वे में। जैसे कि आप कोई आपके कोई घर में कोई हेल्पर्स जो होते हैं, तो उससे कुछ टूट आप डांटने लगे, अरे तुम्हारे को समझ नहीं आता है, तोड़ दिया, तुम्हारे को पता कितना मैं, पर अब आपसे मुंह से निकल गया। पर उसी समय लाइफ लाइन को यूज करना, नंबर एक तो कोशिश करेंगे हम बोले ही ना, सोचे ही ना। पर अगर सोचने या बोलने में कोई बात आपको नेगेटिव आ रही है उसी समय, बट मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि तुम काम बड़ा अच्छा करती हो, मतलब उसी टाइम पे आपने पलट जाना है। ठीक है, इसको कहते हैं लाइफ लाइन। तो बिल्कुल अलर्ट रहना, क्योंकि पूरी पूरी गेम ही अलर्टनेस की, अवेयरनेस की, कॉन्शियसनेस की है कि पर मैं लेकिन लेकिन मतलब बट ओके बट हाँ, पर तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, थैंक यू वेरी मच इतना अच्छा खाना बनाने के लिए। अब कई लोगों को जिसको आप बोल रहे होगे, जैसे बीवी को कोई डांट रहे हो, अचानक पलट जाओ। क्यों? क्योंकि भैया अगर उसी लाइन के अंदर अंदर पलट गए ना, तो तुम्हारा एक और नेगेटिव अंधेरा जुड़ने से बच जाओगे आप, वरना फिर उसके लिए 10-10 ग्रेटिट्यूड बाद में करने पड़ेंगे। अगर उसी सेम लाइन में पलट गए, तो एक के साथ एक करके माइनस हो जाएगा, मतलब वो आपका खत्म हो जाएगा उसी समय, नलीफाई हो जाएगा। बट अगर आपने अब कह दिया और थोड़ी देर बाद आपको याद आई, तब तक मेरी जान 10 याद कर लेना ग्रेटिट्यूड, वरना जिंदगी में पूरी जिंदगी इसी में लगे रह जाओगे। आगे दौड़ पीछे, मतलब होता है ना, एक कदम आगे 10 कदम पीछे। तो बचना है ना हमने, तो लाइफ लाइन यूज कर लेना अगर गलती से हो भी जाए तो आगे। खाली स्थान में कोई भी चीज भर लें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। इस जादुई लाइफलाइन को अपने साथ रखें और जरूरत महसूस होने पर इसका इस्तेमाल करें। मेरी लाइफ में तो ये बहुत ही यूजफुल चीज है, मतलब मेरी लाइफ। अब बोलो मैडम क्या आप इतना नेगेटिव बोलते हो? सोचते हो हाँ। हो जाता है कई बार यार, हो जाता है, मतलब सोच के थोड़ी ना सोचते हैं, पर वो हो जाता है, नेचुरली आ जाता है अपने आप। तो फिर उस समय क्या, फटाफट ये लाइफलाइन यूज कर ले। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा लाइफलाइन मैं यूज करती हूँ हमारे पूरे के पूरे जितने भी ये शुक्राना क्लैन है। आप में से कौन कौन करता है लाइफलाइन यूज? मतलब कि आ जाता है नेगेटिव कुछ भी किसी वे के अंदर, पर शुक्र है भगवान का कि हमें लाइफलाइन दी हुई है जिसको यूज करके हम बच जाते हैं आगे। और यदि भविष्य में कोई छोटी समस्या या स्थिति प्रकट होती है, तो अंगारों के प्रबल ज्वाला में तब्दील होने से पहले ही उन्हें कृतज्ञता से बुझाना याद रखें। इस तरह आप अपने जीवन में जादू को भी प्रज्वलित कर देंगे। जादू और ज्यादा ज्यादा रोशन होता चला जाएगा। तो कोई भी मुश्किल स्थिति है भाई, फटाफट कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, इससे पहले कि वो चिंगारियां आग बन जाओ, पूरा पूरा आपका सपनों का संसार जला दे। उससे पैट पैट जैसे आप नौकरी में है, कुछ चीज आपको ब्रेक डाउन हुई, अब ये थोड़ी ना ब्रेक डाउन बढ़ते 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 मुसीबत बन जाए। उसी टाइम जैसे कुलीग ने कुछ गलत बोल दिया और आपको अच्छा नहीं लगा, कॉपी पेन लो, उस कुलीग के बारे में 10 बातें अच्छी लिखनी शुरू कर दो, ताकि वो वहीं पे चीजें शांत होनी शुरू हो जाए आगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 7, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक स्थिति को चुन लें जिसे आप सबसे अधिक सुलझाना चाहते हैं। नंबर 3, 10 चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप नकारात्मक स्थिति में कृतज्ञ हैं। नंबर 4, अपनी सूची के अंत में लिखें, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नंबर 5, केवल आज के लिए देखें कि क्या आप बिना कोई नकारात्मक बात कहे एक दिन गुजार सकते हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात कहते या सोचते हुए देखें, तो जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल करें
तत्काल रुक जाएं और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। नंबर 6, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू मैम। थैंक यू अंजलि वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। तो पहला और छठा तो सेम है ना। पांचवा क्या है कि आज आपने कितने लोग आज व्रत रखेंगे? यू विल बी ऑन फास्टिंग टुडे। फास्टिंग किस चीज की है कि आज मैं पूरा दिन कोई भी नेगेटिव या कोई भी है ना, जो मतलब सारा दिन मैं सिर्फ पॉजिटिव बातें खाऊंगा। मैं सारा दिन या तो कृतज्ञता बोलूंगा या पॉजिटिव बातें सोचूंगा और बोलूंगा। कितने लोग बोलो ओके आई प्रॉमिस वो अब कि आज हम फास्टिंग पे या व्रत पे हैं कि आज हम सारा दिन सकारात्मक भोजन खाएंगे। नकारात्मक कुछ भी ना खाएंगे, ना बोलेंगे, ना सोचेंगे। और अगर गलती से सोच लिया तो उसी समय मुंह से थू वो कहते हैं बाहर से उगल देंगे। तो उगलोगे कैसे कि उसी समय आप बोलोगे लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि तुमने या वो कुछ भी जो भी उस समय आपको समझ आए उसी समय लेकिन करके उगल देना। ठीक है। तो कौन कौन गेम के लिए रेडी है कि आज पूरा दिन हम ये गेम खेलेंगे? कोशिश करते हो, फिर देखना आपने कितनी बार लाइफलाइन यूज करी। इसी बहाने अलर्ट होकर पता तो चलेगा कि आप दिन में कितनी बार अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हो, जो पता भी नहीं चलता हमारे को, हमने मार देते हैं हम। और इसीलिए हम अपने सपनों से दूर हो जाते हैं। तो आई होप यू आर रेडी फॉर द गेम। बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ पॉइंट जो है वो समझ ही लिया आपने, सामने लिखा हुआ है ना कि आपने कोई पहले तो एक लिस्ट बना लो अपनी नेगेटिव सिचुएशंस की। अगर नहीं समझ आ रहा तो अपने ड्रीम्स को देखना शुरू कर दो, क्योंकि ड्रीम्स होते ही अब आप ड्रीम्स होते हैं उन्हीं एरिया में है ना जहाँ पे इस समय कोई ना कोई ब्रेकडाउन चल रहा है। तो आप उनको लिखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैम, तो मेरा ड्रीम क्या है कि मैजिक बुक प्रैक्टिसेस का इस साल के अंदर 1 लाख लोगों तक पहुंचना। अगर मैं इस साल की बात कर रही हूँ, अगर आप बोलोगे रियल ड्रीम क्या है, तो मैजिक बुक प्रैक्टिसेस का 100 करोड़ लोगों के जीवन तक पहुंचना। तो अभी अगर ये मेरा सपना है तो अभी ब्रेकडाउन क्या है? अभी ब्रेकडाउन ये है कि मतलब कि कितने हजार लोग आ रहे हैं इस समय यहाँ पर। तो मतलब ब्रेकडाउन क्या है कि मतलब बहुत अबंडेंस ऑफ क्वांटिटी के अंदर लोगों का ना होना मैजिक बुक प्रैक्टिसेस के अंदर। ठीक है, तो ये ब्रेकडाउन है। हाँ, अब इस एरिया में कृतज्ञता शुरू करो। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि लोग हर रोज सुबह आते हैं अपनी जिंदगी के सपनों को पूरा करने के लिए, मैजिक बुक प्रैक्टिसेस को ध्यान से सुनते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस समय 833 लोग इस सेशन में है और यहाँ पर अपने जीवन को नेगेटिविटी से बाहर निकालने के तरीके को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, प्रैक्टिस करने के लिए तैयार है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पास जूम सेशन है जिसके अंदर 1000 लोगों से प्लस के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मोस्टली आजकल डिजिटल एयर है और मोस्टली लोग अपने घर पे बैठे बैठे अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से भी किसी भी दुनिया में किसी भी क्लास से, सेशन से जुड़ सकते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारी जिंदगी में मैजिक बुक आई और उन्होंने हमारी जिंदगी में इतना शुक्राना सीखना मतलब मैं आई विल बी कंटिन्यूड। ठीक है, तो मेरे को ये देखना है कि अभी क्या है मेरे पास जिसके लिए मैं कुछ ना कुछ शुक्राना ढूंढ सकती हूँ। I can be having hundred of things to be ungrateful for, but I may be having few things to be grateful for. तो minimum 10, maximum unlimited। शुरू करो और फिर देखो कैसे कमाल के जादू होने शुरू हो जाते हैं। So thank you very much for being in this beautiful journey with all of us. If you have any questions, stay with us for the practice. And आज जो मैं भी लिंक दे दूंगी आपको, जो लोग अभी 12 से 2 में आने वाले हैं, प्लीज आपके एरियाज में जो आपके नेगेटिव एरिया हैं उनमें फोकस्ड प्रैक्टिस कैसे करनी है, ये ना सीखने की चीज होती है। जैसे कि फोकस्ड मतलब कई बार हमें ना समझ नहीं आता इसमें फोकस करना कहाँ पे है। तो वी विल ट्राई कि जितने भी एरियाज लिंक में आ जाएंगे हम उन सबके फोकस कैसे करने हैं वो आपको सिखाएंगे। ठीक है, ताकि आपको अपने एरियाज में प्लस कभी दूसरे को भी कभी बात करनी पड़ जाती है, सिखाना पड़ जाता है। तो कैसे, जैसे कोई बच्चा मार्क्स लाना चाहता है फॉर एग्जाम्पल, तो उसका ब्रेकडाउन एरिया क्या है? मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे। तो मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे मतलब चाहते क्या हो कि हाँ क्लास में टॉप करो या इतने मार्क्स ले आओ, तो मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे तो ब्रेकडाउन एरिया क्या है? फोकस किस पे करना है? मार्क्स पे करना है, पढ़ाई पे करना है, कॉन्सेंट्रेशन पे करना है, किस पे करना है? तो कई बार शुरू में तो देखो आप जनरल जो समझ आ रहा है शुरू करो, परंतु कई बार वो कहते हैं ना वो दुखती रग ढूंढनी पड़ती है। तो दुखती रग ढूंढना भी एक आर्ट होता है। जब आप रेगुलरली ग्रेटिट्यूड करोगे ना तो आपको दुखती रग खुद पता चलनी शुरू हो जाएगी जब आप अच्छे टाइम के लिए ग्रेटिट्यूड करोगे। बाकी जिसको पता है वो स्टार्ट करे अपना अपना काम। ठीक है, सो सजीदा जी एक बार लिंक डाल देना मैम में, ताकि मैं जी देख लिस्ट में क्या क्या दुखती रगे ढूंढनी है लोगों की। तो वो हम काम शुरू करेंगे और आगे बढ़ते 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 आई वुड सजेस्ट
कुछ भी 2 घंटे तो यार अपने लिए सब लोग निकाल सकते हो। आज बेटा जी ने कितनी अच्छी लिस्ट बनवाई है ना सुबह आप लोगों की, है ना, जहां जहां आपने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, नेगेटिविटी किया, उन्हीं एरियाज को पकड़ के अपना फोकस ग्रेटिट्यूड शुरू करो प्लीज एवरीवन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन द सेशन, लव यू ऑल, thank you for having the great focused gratitude for all the areas of your life and bringing abundance of light there. Thank you very much. Yes, any question before we sign off? यस मैम। किसी ने लिखा है कई बार मन में ही नेगेटिव रहते हैं, मुंह पे नहीं आता है। ये तो सबसे खतरनाक है, सबसे खतरनाक, इन्हीं को घुनने बोलते हैं। हमने शुरू में बताया था ना कि मतलब कि वो इंसान जो जो अंदर है वही बाहर है, उसको बीमारियां कम लगती हैं, पता है आपको, क्योंकि उसने एनर्जी अंदर नहीं रखी ना, उसने जो है वो अंदर है वो बाहर है। पर वो लोग जो बाहर कुछ हो रहा है और अंदर कुछ हो रहा है, ये अंदर ही अंदर घलते रहते हैं, अंदर ही अंदर आपको ऐसे ऐसे, मतलब आप दूसरे का तो क्या नुकसान करोगे, आप खुद का ही नुकसान इतना जबरदस्त कर लोगे। तो बिवेयर ऑफ इट, अंदर से भी आपको जो नेगेटिविटी उसको ठीक तो करना ही पड़ेगा ना। तो प्रैक्टिस तो सेम ही है, आप मैंने शुरू में सिखाया तो वह बीइंग में करो चाहे डूइंग में करो, दोनों ही केसेस में आपके अंदर नेगेटिविटी तो आ ही रही है। डिड आई, मैंने तो इसको डिटेल में समझाया पहले बहुत एक क्लास के अंदर। इज इट आंसर्ड? यस यस मैम। क्वेश्चन यही था ना, मेरे ख्याल से आंसर हो गया। यस मैम। हाँ, कल तो एक मैंने थे कैन बदबू वाला भी बताया था, अगरबत्ती वाला, चूहे वाला, वो यस मैम। मैंने इसी क्लास में बताया ना कि मतलब आप अंदर से चाहे आपके अंदर चाहे चूहा मरा पड़ा है, अब चूहा मरा पड़ा है तो वो बताने की जरूरत थोड़ी ना किसी दुनिया को कि भी चूहा मरा पड़ा है, चूहा मरा पड़ा है तो पता चल जाता है कि बदबू आ रही है। सिमिलरली अगरबत्ती जल रही है कहीं किसी कमरे के कोने में तो बताने की जरूरत थोड़ी ना होती है, खुशबू आ जाती है लोगों को। सिमिलरली आपके अंदर क्या चल रहा है आपको लग रहा है दुनिया को नहीं पता, प्लीज एनर्जी ट्रांसफर्स। तो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए आज आपको अपने आप पे काम करना शुरू करना है विद दिस एक्सरसाइज। स्टार्ट एंड सी द डिफरेंस। Another question is, can it also be done for a relationship which I do not want in the future since there is negativity there? अब से मैं आपको सजेस्ट करूंगी पहले शुरुआत में वहीं पे अपनी एनर्जी लगाओ, क्योंकि इसमें टाइम, एनर्जी, फोकस सब कुछ लगने वाला है आपका, जहां पर आपको मैटर करता है उन एरियाज को ढूंढो ना। आपको इतने वेले तो बैठे नहीं हो, हाँ, तो पहले तो वो एरियाज ढूंढो जहां पे आपको जादू जल्दी चाहिए, चमत्कार जल्दी चाहिए, तो उन एरियाज में रोशनी पहले इकट्ठी शुरू करो। फिर जब आपके सारे एरियाज बिल्कुल रोशन हो जाएंगे, आपकी जिंदगी झिंगा लाला हो जाएगी, बहुत बढ़िया हो जाएगी, उस समय फिर ये वाले का काम भी कर लेना। वो मेरे लिए जरूरी नहीं है, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं उसको चाहती भी नहीं हूँ मेरे रिश्ते में हो, ठीक है। पर आपको अगर नेगेटिविटी आ ही रही है तो फिर हटा लो। अपने आप को शुद्ध करना, अपने आप को प्योर करना, अपने आप को रोशन करना तो आपका काम है ना, है ना। अब मेरे अंदर ही कोई टॉक्सिन है या मेरे अंदर कोई जहर है तो मेरा नुकसान तो हो ही रहा है ना उसके अंदर, तो फिर अपने आप को ठीक कर लेना। इज इट आंसर? यस मैम। मैम कुछ क्वेश्चंस लिंक से ले रही हूँ जो पहले के असाइनमेंट से भी हो सकते हैं। बोलो। मैम ये जो मनी वाली प्रैक्टिस है जो नोट हाथ में लेके करना है, इसमें बचपन में हमारे ऊपर जो कुछ भी पैसे खर्च हुए उनको ही याद करके शुक्राना करना। या वो ब्लेसिंग, मनी। हाँ, तो आपने जैसे आप लिखने में तो आप कर ही रहे हो कि जो आपने अपनी मेमोरी लेन में जाके जहां जहां पे आप पे पैसा खर्चा हुआ या आपके ऊपर कोई भी ऐसे, है ना, जहां पे आपने नहीं पैसे ओन करे पर किसी और ने आप पे खर्चे करे हैं, तो उन सबको आपको याद करके रेगुलरली आप थैंक यू तो कर ही रहे होगे ना उस चीज का। और फिर जब भी आप ये नोट पकड़ते हो, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ, उस सारे धन के लिए शुक्रिया जो मुझे पूरे जीवन भर दिया गया है। और जस्ट सोचना है कि आपको जीवन में कहाँ कहाँ पे धन मिला है, जहाँ पे, है ना, किसी पापा ने या मम्मी ने या कभी भी किसी के थ्रू जो भी आप पे खर्चा हुआ है, एंड जस्ट बी ग्रेटफुल। दिस इज हाउ यू विल स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग द नेगेटिविटी फ्रॉम द मनी एरिया टुवर्ड्स द पॉजिटिविटी विद योर डीप फेल, बिकॉज वो तो हुआ है ना, पास्ट में सच में हुआ है, आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो, है ना। तो जिस चीज सच में हुई है वो आपकी बिलीव्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत जल्दी काम करती है ना। तो उन चीजों को याद कर लो, उन चीजों को सोचकर जब भी आप इसको नोट को पकड़ो, गहराई से फील करो ग्रैटिट्यूड। ये फीलिंग जो अंदर से आती है ना, वो आपके जो करेंसी के लिए, नोट के लिए जो आपकी एनर्जी है उसको बहुत जल्दी शिफ्ट कर देती है। तो हाँ, यही करना है। इज इट आंसर? यस मैम। Next question is कि I'm very confused and unclear on all assignments except Magic Rock. What tone to follow while writing? How much to write? How to write for money? How to write for health? पहली बार कर रहे हो? हाँ पहली बार है, लेकिन कल ही आया है इनका ये क्वेश्चन। आपको आराम आराम से ही चलना है।
जैसे कि अभी हम क्योंकि बहुत लोगों का ये मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि हमने लेट ज्वाइन किया है, मतलब मैजिक बुक में तो हम लोग 10 दिन से चल रहे हैं, तो उसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। पर हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं एमएमएम के अंदर, जिसमें आपके डे 1 का असाइनमेंट, जैसे काउंट योर ब्लेसिंग कैसे करना है, कैसे उसका तरीका है, उससे स्टार्ट करेंगे। फिर मैजिक हेल्थ पे आएंगे, मैजिक रिलेशनशिप पे आएंगे, उसमें क्या क्या कैसे कैसे करना है। फिर मैजिक मनी पे आएंगे, फिर वे आउट ऑफ नेगेटिविटी पे आएंगे। तो ताकि आपके वो 2 घंटे के अंदर सारे ही असाइनमेंट्स कैसे करने हैं वो आपको क्लियर हो जाए, और आप उसको करते 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 आगे बढ़ो। तो वो मुझे मेरे को भी बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन ये आया है कि हमने लेट ज्वाइन किया, हमें थोड़ा। तो आप जो बोल रहे हो वो इसलिए क्योंकि आपने बुक को टाइम नहीं दिया। वरना जिन लोग, अच्छा, जो फर्स्ट टाइमर हैं और उन्होंने आपने सारे सेशन अटेंड करे और सारे असाइनमेंट्स भी आप करो, आपको समझ आ गई, फर्स्ट टाइमर्स पे बोलेंगे यस। जिन्होंने हर एक चैप्टर को उसी दिन समझ लिया है और उसी दिन असाइनमेंट कर लिया है, उनको सब समझ आ गई, वो बोलो यस, फर्स्ट टाइमर्स। हाँ, तो हम इतने तो डिटेल में समझा रहे हैं आपको हर रोज मॉर्निंग में, सब कुछ समझा रही हूँ, सब कुछ बता रही हूँ, है ना, और सब कुछ आंसर्स भी दे रही हूँ। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप उसी दिन पूछोगे ना, या फिर समझने वाली क्या बात है यार। वो अपने छोटे छोटे बच्चे नहीं देखे जो इस समय सेशन में आ रहे हैं, सुबह कई लोग अपनी शेयरिंग करते हैं, वो चैप्टर पढ़ के, सिर्फ असाइनमेंट पढ़ के भी समझ जाते हैं कि हमें क्या करना है। यार रिकॉर्डिंग दोबारा से सुन लो तो भी समझ जाओ। और अगर आपको लग रहा है इसके बाद आपको हैंड होल्डिंग की जरूरत है तो एमएमएम में आ जाओ। एमएमएम में अभी मतलब अभी दिन मेरे ख्याल से एनी कह रही थी हम रीलॉन्च करेंगे, क्योंकि काफी लोगों ने लेट ज्वाइनिंग करी है। तो हम लोग अभी, जैसे 13 से स्टार्ट था, बट 20 तारीख से रीलॉन्च होगा दोबारा से, ताकि डे 0 से हम फिर से स्टार्ट करें और ज्यादा फोकस्ड होकर काम करें, और हर एक चैप्टर को बीच बीच में इंक्लूड करते चले जाएं। तो अभी चैप्टर्स थोड़े हो भी जाए ना, तब तक 8-10 चैप्टर्स हो भी जाएंगे, ताकि एक ही दिन में आप 10 के 10 चैप्टर्स का असाइनमेंट एक साथ कर लोगे। एंड सेकेंडली, कई लोगों को टाइम की लग रहा था कि टाइम उनको 12 से 2 के अलावा कोई ऑप्शन मिल जाए, पर करना वो ग्रुप प्रैक्टिस ही चाहते हैं। तो वी आर थिंकिंग ऑफ इट कि आपको एक इवनिंग में 4 से 6 का ग्रुप प्रैक्टिस मिले, और एक मॉर्निंग में 4 से 6 अमृत वेले में भी ग्रुप प्रैक्टिस मिले। तो जितने भी एमएम वाले हैं उनको दिन में 6 घंटे की ऑप्शन होगी, कोई भी 2-2 घंटे में जितनी मर्जी बार प्रैक्टिस कर लो। बाकी जो आपका क्वेश्चन है कि समझ नहीं आ रहा, तो मेरी जान च्यवनप्राश खाओ, थोड़ा थोड़े बादाम भी भिगो के खाओ, शायद उससे फर्क पड़ जाए। आई होप इट्स आंसर। यस मैम। मैम, आपने कहा था ग्लैड गेम के बारे में आप कुछ हाँ, लास्ट में ग्लैड गेम। बताएंगे। तो आपने ग्लैड गेम खेलनी है। ग्लैड गेम का मतलब ये होता है हर चीज के बारे में अपना, आज जैसे दिन में, जैसे कल मैंने क्या बनाया था, मैं क्या, बच्चों ने पहले बनाया था, मैंने तो आरती बनाई थी कल। जैसे कि ओम जय जगदीश हरे, तो मैं उसमें बोलती हूँ आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर द ग्लास, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर वाटर, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई मोबाइल फोन, आई एम ग्रेटफुल फॉर द मैजिक बुक, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई चश्मा, I am very grateful for kettle. I am very grateful for Vaseline. I am very grateful for bottle. मतलब दिस इज माय फेवरेट। ठीक है। ये बच्चों ने बनाया था, पर मुझे धुन बड़ी अच्छी लगती है, और आराम आराम से बंदा फील ले लेके गाने गा रहा होता है इसके ऊपर ना। तो मतलब कि पूरा दिन बैठा होता है, ये आरती गाती रहो, मतलब आरती क्या, जय जयकार तो करना है, जय जगदीश हरे। अब जगदीश तो वो तो सब में है ना, तो बॉटल में भी है, ग्लास में भी है, बुक में भी है, नाइट सूट में भी है, चादर में भी है, रजाई में भी है। तो ये गाना ही दिन भर। तो ये कल हमने एमएमएम में क्रिएट किया था कि हर कोई अपना अपना फेवरेट गाने के ऊपर अपना धुन सेट करेगा। नाउ ग्लैड गेम इज सिमिलर। ग्लैड गेम भी यही है। ग्लैड गेम ये है कि हर सिचुएशन में आप कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हो टू बी पॉजिटिव अबाउट, स्पेशली अगर बहुत नेगेटिव सिचुएशंस हो तब भी। तो जैसे कि एग्जांपल, जब हमने बहुत पहले ग्लैड गेम करी थी मी एंड माय हस्बैंड, तो तब मेरे बेटे का 18th बर्थडे था उस टाइम पर। मतलब आई एम जस्ट शेयरिंग द स्टोरी एग्जांपल। तो 18th बर्थडे था तो बड़ी स्पेशल हो, जैसे एनी का 18th बर्थडे था, तो वी हैड अ वेरी बिग क्विंसिनेरा, बहुत बढ़िया सेलिब्रेशन था यहाँ पे रमाडा में। तो मतलब आई फील लाइक कि बच्चे एक एडल्टहुड में आने वाले हैं, उससे पहले उनके बचपन को सेलिब्रेट करना, उनके सब मजे यादों को सेलिब्रेट करना, और सबके साथ सेलिब्रेट करना, दैट वाज माय जॉय ऑफ सेलिब्रेशन। तो बेटे के लिए था, तो हमें था कि कैसे सेलिब्रेट करें, तो उसका बैंक्वेट में या ऐसे यहाँ पर फार्म हाउस में करने का मन नहीं था। तो हमने बड़ा सोचा कि कुछ डिफरेंट करना है, डिफरेंट कर। तो फाइनली वी थॉट कि चलो हम इसका डेस्टिनेशन बर्थडे करेंगे। तो वी बुक्ड, जैसे कि फुकेट को हमने सोचा कि चलो इंटरनेशनल डेस्टिनेशन सेलिब्रेशन फॉर हिज 18th बर्थडे। तो हमने कहा ठीक है। तो ऐसे करके हम बड़ी तैयारियां कर ली कि चलो बुक कर दिए, वहां पे रिजॉर्ट्स बुक कर दिए, होटल्स बुक कर दिए, फिर ऐसे कर करके फिर हमने सबको अपने फ्रेंड्स को, फैमिलीज को इनवाइट भेजा कि भाई आओ आओ, चलो चलो, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। तो मेरे फ्रेंड्स तो और इनके फ्रेंड्स कुछ कुछ रेडी हो गए, वो सारे के सारे मतलब बिल्कुल एक नंबर के
मतलब क्या बोलूं, छिछोरे टाइप्स, मतलब कि मस्ती करने वाले फ्रेंड्स थे। मतलब जाएंगे तो वहां पर मतलब पूरा खाना पीना, पीना मीन्स पीना, तो मतलब उस टाइप के फ्रेंड्स थे। और मॉडर्न टाइप कपड़े कुपड़े भी, मतलब उनकी वाइफ ऐसे मॉडर्न ही पहनती हैं, तो चलो भाई बहुत अच्छा, मतलब बिल्कुल बढ़िया सर्कल बन गया। तो और बाय चांसली जब हम जा रहे थे, क्योंकि वहां पे विजा ऑन अराइवल ही होता है, तो इसलिए सिर्फ टिकट ही बुक करनी होती है, और तो कोई फॉर्मेलिटी होती नहीं है वहाँ फुकेट जाने के लिए। तो बिल्कुल 2 दिन पहले मेरे जो नंदोई थे बाई चांसली हमने मैसेज सबको ही दिया था ना कि मतलब कोई जाना चाहता, तो मेरी जो नंदोई थे जो कि बहुत स्ट्रिक्ट है और बहुत ही वेल कल्चर्ड है, और मतलब बड़े संस्कारी टाइप्स होते हैं ना वो वाले लोग जो होते हैं, तो मतलब मेरे जो नंदोई है उनका मैसेज आ गया कि ठीक है हम भी इस खुशी में आपके साथ चलेंगे। हमने कहा मतलब जब तक जो मैंने जो पैकिंग की थी, सारे शॉर्ट्स एंड ड्रेसेस करी थी, मैंने कहा बुर्का रख लूं क्या ऊपर से, अब क्या करूं ये कहा, मतलब वो मेरे नंदोई भी चल रहे हैं साथ में, और जो मेरे फ्रेंड्स थे वो उनको बिल्कुल नहीं जानते, मतलब एक बार जिंदगी में ना देखा ना मिला। और जो सर्कल बन गया ना, कुछ कुछ लोग ऐसे आ गए उसके अंदर कि मतलब कि बड़ा ही अजीब सा मिक्स हो गया, कि मतलब इनके साथ तो हम हा हा ही फूहड़, इनके सामने हाँ जी खा लो जी पी लो जी, तुम इस टाइप का हमारा बिहेवियर था। तो अब हम बड़े हैरान कि अब करेंगे कैसे मैनेज वहां पे जाके, हाँ, और वहां पे जाके तुम्हें क्लब्स में जाना है, नाइट पार्टीज में जाना है, तो मतलब ये सब कुछ हम मैनेज कैसे करेंगे वहां पे। तो अब मैं और मेरे हस्बैंड बिल्कुल एकदम से ऐसे हो गए कि हे राम, हम इनवाइट तो हमें क्या पता था मान जाएंगे हमें थोड़ी ना पता था ये फुक्कड़ जाने के लिए मान जाएंगे तो संस्कारी लोग तो मतलब बड़ा यू और अपने बच्चों के साथ तैयार हो गए, बीवी बच्चे और सब चल रहे हैं अभी, वो भी फैमिली भी चल रही है हमारे साथ। अब हम लोग ठीक है अभी एयरपोर्ट पे पहुंचे, और मेरे को था कि वो मेरे फ्रेंड्स इधर से आए, ओ भाई उनकी बीवियों ने शॉर्ट्स पहने हुए और यूं बिल्कुल ही हिप हॉप, वो है ही हिप हॉप फैमिली हमारी उधर वाले सर्कल जो है, तो मतलब हिप हॉप ऐसे, मैंने कहा भाई ये तो अब भी से बन गई तो मतलब अभी तो हिप तक पहुंच जाते, अभी तो एयरपोर्ट पे है, मेरे को उधर से वो आने वाले हैं, वो कहेंगे ये कैसा तुम्हारा सर्कल है, ये कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हो, मतलब वो गुरुद्वारे टाइप्स लोग होते हैं ना वो वाले। तो मैं अपने हस्बैंड को बोल रही, मैंने कहा मैं क्या करूं, मैं कैसे इनको संभालूं, उनको संभालूं। तो वो कहते चुप हो जा यार, मैजिक बुक की प्रैक्टिस करते हैं, अब कुछ इस समय तो जादू ही हमें संभाल सकता है, और आगे जाके तो वहां पे भी हमने कितना, हमने पूल पार्टीज रखी हुई थी, यॉट पार्टीज रखी हुई थी। अब यॉट पार्टी पे तो बंदा यॉट के हिसाब से ही जाएगा ना, तो जो भी था, तो हमने कहा ठीक है, हमने मैग्निफिसेंट आउटकम लगाना शुरू किया। उसी समय वो सामने से आ रहे थे मेरे नंदोई, मेरी ननद और उनके बच्चे, तो मेरे हस्बैंड ने जोर की बोला आई एम ग्लैड आप हमारे साथ फुकेट चल रहे हो, आई एम ग्लैड। वो ना हम वहां खड़े थे लाइन में, जो एयरपोर्ट पे फ्रिस्किंग लाइन होती है जहां पर आप अपना बोर्डिंग पास लेते हो, वो लाइन में खड़े थे हम लोग, उस समय तो 20-22 लोग होंगे, वो अभी और लोग ज्वाइनिंग कर रहे थे हमें। तो हम लाइन में खड़े, जितने भी बाकी खड़े लोग थे सब डर गए, ये क्या हुआ एकदम से अरविंद जी को और आई एम ग्लैड हम सब लोग इकट्ठे फुकट में जा रहे हैं, वाह वाह वाह। तो वाह वाह आई एम ग्लैड, सब लोग हंस पड़े कि हुआ क्या, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था क्या होने वाला है। फिर वो जो भी, आई एम ग्लैड हमें बोर्डिंग पासेस मिल गए, आई एम ग्लैड हम यहाँ पर एयरपोर्ट पे सब कितने मजे कर रहे हैं, आई एम ग्लैड हम फ्लाइट में इकट्ठे बैठे हैं। फिर वो फुकट में होते, आई एम ग्लैड हमारे लिए, हमें लेने के लिए इतनी बढ़िया बस आई है लेने के लिए, आई एम ग्लैड हमारे रिजॉर्ट में क्या कमाल के समुद्री नजारे हैं, आई एम ग्लैड। तो अब वो उन्होंने जो बीमारी मतलब एक तरह की जो ये जो बात थी ना, वो इतना वायरल हो गई कि जितने भी लोग थे हमने कहा अब हम सब ना गेम खेलेंगे, यही वाली गेम खेलेंगे। तो चाहे उन्होंने बुक की नहीं की, पर गेम तो समझ आ गई ना कि हमने कोई भी अच्छी चीज ढूंढ के उसी समय या तो जोड़ के बोलना वाह, या हम बोलेंगे आई एम ग्लैड। तो देखते हैं सबसे ज्यादा किसकी आवाजें आती हैं। तो मेरे नंदोई सबसे पहले बोल रहे आई एम ग्लैड हम फुकेट में आए हैं इतने मजे करने के लिए, आई एम ग्लैड आज ब्रेकफास्ट में कितने बढ़िया बढ़िया वैरायटी है, आई एम ग्लैड। मतलब मेरे नंदोई भी उस गेम में पार्टिसिपेटिंग हो गए। इधर से मेरे फ्रेंड्स शुरू, मतलब वहां पे ना, अदरवाइज उन फ्रेंड्स में भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे जो आपस में थोड़े राइवल फ्रेंड्स थे, जो आपस में थोड़े, होता है ना कॉम्पिटिटिव वाली, जैसे औरतों में हो जाता है कई बार कि उसके कपड़े ज्यादा अच्छे, मेरे कपड़े ऐसे, या उसने ये पहना, उसने वो पहना, उसने ये बोल दिया, उसने ये कह दिया। अब वहां पर इस सोच के लिए जगह ही नहीं बची, क्योंकि हर कोई आई एम ग्लैड की गेम में इतना बिजी हो गया, हर समय कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है कि अच्छा मेरी बारी है मुझे बोलना है। तो मतलब कि वो गेम जो थी वो इतना कमाल की, मतलब वहां पे हमने, अब फिर तुम भूल ही गए ना कौन नंदोई कौन ननद, कोई फ्रेंड कौन कजन, कोई कुछ भी नहीं याद रहा, हर कोई बस ग्लैड गेम का पार्टिसिपेंट है। और जो मजे आए वहां पे फुकेट, वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल ट्रिप। मतलब वहां पे रात को वहां पे बीच पार्टी थी, बीच पे डिनर था, तो हर कोई ढूंढ रहा आई एम ग्लैड क्या कमाल की अरेंजमेंट करी है, आई एम ग्लैड खाने में क्या बढ़िया ये जो भी खाया होगा उस समय। तो मतलब कोई ड्रिंक्स को पीते हुए कर रहा है, कोई कुछ कहते हुए कर रहा है, मतलब नॉन स्टॉप ये
इसी के जयकारे लग रहे थे वहां पे। तो आई एम ग्लैड, इज सच अ वंडरफुल, एक बार करके देखो अपनी फैमिली में, अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड जो भी घर में है। आई एम ग्लैड, मतलब ग्लैड गेम बोलते हैं, चलो हम ग्लैड गेम खेलते हैं, हमें ज्यादा ज्यादा चीजें ढूंढनी है टू बी ग्लैड फॉर। आई एम ग्लैड कि आज खाने में ऑमलेट बना है, आई एम ग्लैड कि वाह आज तो खाना बिल्कुल ठीक टाइम पे मिल गया, आई एम ग्लैड तुमने कपड़े धो दिए ठीक टाइम पे, आई एम ग्लैड मेरे आज वॉशिंग मशीन अच्छी चल रही है। तो दैट वे ग्लैड गेम बिकम्स वेरी वेरी बिग सोर्स ऑफ योर पॉजिटिव एनर्जी। ओके, तो और अगर ये आप 3-4 लोग मिलके खेल रहे होगे तो और भी मजा। सो आई होप आई हैव टोल्ड द स्टोरी। बहुत मजेदार स्टोरी है, बहुत लंबी स्टोरी है, मतलब कि कमाल की स्टोरी। और कमाल का मतलब कि हम लोग वहाँ सब क्लब्स में गए, सब डिस्कोज में गए, मतलब बच्चों ने अपने, जिन्होंने भी जो भी मसाज वगैरह करानी, सबने जो भी कराना, पर सब कुछ इतना वेल मैनेज्ड था, इतना वेल अरेंज था, इतना हाई क्वालिटी था, बिकॉज ऑफ द बीइंग ग्लैड। यही हम चिंता करते, डरते, घबराते, एक दूसरे को मैनेज कर रहे होते, एक दूसरे की वो छुड़वा रहे होते, कई बार होता है टिप्स हो जाती हैं छुड़वाना करना, तो उसी में उलझे रह जाते। अब हम ग्लैड गेम में उलझ गए तो बस ग्लैड 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 ग्लैड। तो ऑल द बेस्ट फॉर यू टू हैव अ ग्लैड गेम इन योर लाइफ। इज इट आंसर्ड? यस मैम। मैम एक क्वेश्चन और आया, ले लूं? बोले। इट इज, हाँ, आपने जैसे एग्जाम्पल दिया था ना कैब चार्जेस का, तो इमीडिएटली उस समय एक्शन लेना पड़ता है, कुछ बोलना पड़ता है। तो हाउ डू यू ऐसे सिचुएशन में, जब और सामने वाला भी कुछ बोल देता है एंड यू हैव टू रिप्लाई एंड लगता है मैं तो बुद्धू बन गई, कुछ इमीडिएटली अपने जवाब आपने देते हैं। नेगेटिव बोला, देखिए आप, हमारे मुंह से नेगेटिव बात निकल जानी है, नेगेटिव सोच लेना, ये तो एक नॉर्मल नॉर्मल कंडीशनिंग है ना। फिर आप जादू की कंडीशनिंग में कैसे एंटर करोगे, मैजिक की कंडीशनिंग में जो कैसे एंटर करोगे? जैसे कल मैं सोच रही थी, अगर ये मेरे को ओवरचार्ज हुआ भी है, तो मैंने ही पास्ट में कभी ना कभी टैक्सी के रीजनेबल चार्ज होने का थैंक यू करना भूल गई हूँ मैं। ऑब्वियसली जो आज बुक ने यही तो बोला है कि जहां पे भी आपके ब्रेकडाउन है, नेगेटिविटी है, वो इसलिए है क्योंकि आपने ही पास्ट में उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है। तो इतने सालों से, मैं तो कब से कैब यूज कर रही हूँ, मे बी आई डोंट नो 8-9 सालों से कर रही होंगी शायद, जब से भी आई होंगी ये उबर ओला जो भी होती हैं, तो तब से यूज कर रही हूँ। तो मोस्टली पहले तो यही आता था ना कि जो रेट आपको दिखाया गया वही रेट वो चार्ज करते हैं। तो ये तो अभी लेटेस्ट ही कुछ गड़बड़ होनी शुरू हुई है। तो मैंने सोचा कि अच्छा, इतने सालों से जो उन्होंने रेट बोला वही चार्ज किया, क्या मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूं? नहीं, आई टुक इट फॉर ग्रांटेड। आई नेवर थॉट इट कि इवन ये भी कोई चीज हो सकती है जिसके अंदर मैं शुक्राना कर सकती हूँ। तो ये तो एंड यस्टरडे आई गॉट अ फोकस्ड एरिया टू बी ग्रेटफुल फॉर, कि जो चीज लिखी होती है, बताई गई होती है, वही रेट चार्ज करने के लिए शुक्रिया। तो दैट वे कई बार हम ही चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड या नेगेटिव ले लेते हैं, इसलिए वो चीजें, जैसे कि हो सकता है कोई रेट हो, जैसे कि मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले ना, आई वाज कमिंग फ्रॉम समवेयर, और मैंने बाई चांस थी, जल्दी जल्दी में थी, तो मैंने चेक भी नहीं किया। तो उसने मेरे से किसी, यार यार हयात से अशोक विहार आने का नॉर्मली मैं आती जाती हूँ 500 रुपए के करीब लगता है, उस दिन उसने 800 रुपए ले लिए, एंड सडनली आई हैड इट, हाउ 800 रुपए कैसे? कहता है मैडम कभी कभी हो जाता है, पीक आवर्स में ना, रश में हो जाता है, रेट बढ़ जाते हैं। एंड एट दैट टाइम आई वाज रादर नेगेटिव। तो मैंने देखा पिछले 3-4 बार से मैंने उल्टा नेगेटिव सोचना शुरू किया है इस बारे में, जब से कुछ हो रहा है। तो मतलब कि पॉजिटिव होना तो टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, और कुछ गड़बड़ हो जाए तो नेगेटिव सोच लिया, तो अब क्या होगा? बढ़ती चली जाएगी प्रॉब्लम, बढ़ती चली जाएगी प्रॉब्लम। उससे बेटर आज ही फोकस कर दूंगी मैं, मतलब आज ही फोकस ग्रेटिट्यूड करके उस एरिया में पिछले सारे अपने पापों को धो दो और नई रोशनी पुण्य के थ्रू ले आओ। इज इट आंसर? यस मैम, डन मैम द क्वेश्चन। तो ये आपकी किसी भी लाइफ की किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, आपकी मेड्स के साथ, आपके हेल्पर्स, रिलेटिव्स के साथ, सास बहू, जो भी चीजें होती है, कहीं पे भी आप इस पावर को यूज कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको लगता है कि जैसे इस केस के अंदर फोकस्ड, क्या है फोकस्ड वाली प्रॉब्लम, वो कहते हैं ना कौन सी नाड़ी दबी हुई है, दुखती रग को पकड़ना, तो वो भी एक आर्ट होता है। जैसे मुझे समझ आ गया कि मैंने कौन से वाले एरिया में गड़बड़ की हुई है, तो उसको पकड़ कर मेरे को उसी के ऊपर 10 अपने ग्रेटिट्यूड लिखने हैं। अगर तो टू द पॉइंट मैंने ग्रेटिट्यूड लिख दिए, उससे में जादू आ जाएगा, क्योंकि वो फोकस्ड है ना, तो टू द पॉइंट होना चाहिए। तो ये दाढ़ी पकड़ना ये कैसे करते हैं, मतलब इन द सेंस कि वो थोड़ा टाइम हम इस पे लगाएंगे आज, क्योंकि इस पे भी टाइम लगता है। प्रॉब्लम पहले पढ़ूंगी, फिर समझाऊंगी कि इसमें ऐसे ऐसे पकड़ना है आपको अपना। और इस चीज के ऊपर, जैसे किसी ने कल क्वेश्चन पूछा था लाइफ पार्टनर का, कि पति ढूंढ रहे हैं वो अपने लिए, लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो अगर अभी नेगेटिव है वो एरिया में कि आपको लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा, तो आपको कौन से एरिया के अंदर, जब बात करूंगी तो पता चल जाएगा ना कि इस एरिया के अंदर आपको फोकस करना है। यहाँ पे फोकस कर दो, आपके अपने आप रोशनी आ जाएगी फटाफट। जैसे आपके घर नहीं होते, तो घरों में आपको पता होता है कि जैसे घर है, अब एक कमरे में लाइट नहीं आ रही, तो आप पहले तो आप जाके एमसीबी देखोगे पीछे की, या तो पहले तो ये देखोगे बाकी और घरों में लाइट आ रही है,
हाँ आ रही है तो यानी कि चलो ठीक है। फिर आप एमसीबी देखते हो कि एमसीबी तो नहीं नीचे चला गया, मेन पॉइंट तो नहीं बंद हो गया। फिर उसके बाद नहीं वो भी ठीक है, फिर आप कमरे में आते हो तो कमरे में देखते हो कि बाकी कमरों में तो रोशनी ठीक है, यहीं पे प्रॉब्लम है। तो इस कमरे के अंदर या तो कोई इसका पर्टिकुलर एमसीबी बंद है, या इसकी वायरिंग में कुछ प्रॉब्लम है, या इस ट्यूब में हो सकता है प्रॉब्लम हो कि कमरे में तो रोशनी आ रही है पर ट्यूब में ही प्रॉब्लम है। तो ऐसे हम करते करते टू द पॉइंट कई बार ब्रेकडाउन को पकड़ने से, बट ट्यूब में ही प्रॉब्लम है, ट्यूब को ही ठीक करो, उसी से रोशनी हो जाएगी। पूरे पूरे कमरे की पाइपलाइन क्यों चेंज करा रहे हो, वायरिंग क्यों चेंज करा रहे हो? तो कई बार टू द पॉइंट काम करने से रिजल्ट्स बहुत फास्टर और बहुत सस्ते में हो जाते हैं। सस्ते में मतलब होता है कि 10 20 30 में भी हो जाएगा रिजल्ट, क्या पता, डिपेंड है ना कौन सा वाला दुखती रह गया तुम्हारा, पकड़ो उसको। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन दिस जर्नी, थैंक यू वेरी मच फॉर रियली 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 कमिंग आउट ऑफ नेगेटिविटी फ्रॉम योर लाइफ। थैंक यू सरिता जी, थैंक यू अंजलि, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू एनी, थैंक यू एनी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू लीड द एमएमएम टुडे आल्सो। बस मोस्टली एनी करती है आजकल, इसने मेरे को ये बहुत बड़ा ऑनर दिया हुआ है कि मम्मी आप करो। तो मतलब एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटीफुल प्रैक्टिस to be with hundreds of people to focus my gratitude as well. Thank you very much. Love you all. See you again. Thank you. Thank you, Ashmin ma'am, for a wonderful session. This Thank and